like so many people to be there, so थोड़ा overwhelming है. Are you nervous? Okay. So that's Sajia, the director of Dhadak 2. Hello. It's Rahul who's written the film also with Sajia, and he was the writer in the film, right? And also supporting her fully. He's the associate, he's a writer, he's everything of Dhadak 2. That is a joke of our team. He's done everything. Yeah, he's just there always with her, supporting. And then Vipin sir. Vipin sir I know from many years. Long back when I used to work with Mr. Barry John. He came as a guest lecturer, and he was doing Meisner exercise. The student दो कर रहे थे exercise. उसमें एक repetition exercise होती है. And he was doing it. And he said, "Look, देखा, something moved in them." क्या देखा? कुछ नहीं moved. हमें तो कुछ नहीं देखा. What's happening? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. And then after few minutes मुझे समझ आया कि ऐसा connection मैंने actors के बीच में कभी देखा नहीं. To understand Meisner, right? And you were the one who did that. इनफैक्ट हम लोगों ने ये वर्कशॉप की थी फॉर अ फिल्म माइजनर एंड सर ने कंडक्ट किया था. सो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई थी हमारे साथ कि हमें इनिशियली समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. बट देन शाज़े एक्चुअली सेट पे शी यूज्ड टू पॉइंट आउट कि गाइस रिमेंबर माइजनर. Oh wow. एंड सडनली टेक मिलता था. Wow. Yeah, so I know for you what we are saying is alien. Who is this Meisner? किसकी बात कर रहे हैं? This is a coach who's renowned for being in the moment and listening, and repetition was his major work. So we're talking about that. Living truthfully in the imaginary circumstances. That's what he said. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं. This lady who taught, हमारी क्लास में एक लेडी थी, and she fought with everyone. In America. In Toronto. Toronto. She fought with everyone. Like it was very. She was the most difficult person in that group, and my teacher gave me a scene to do with her. So I met her a few times. She was a freak, like a freak. I met her a few times, and I went back to my teacher. I said, "I'm not doing the scene with her. She drives nuts. You all know. You all talk about her, how bad she is and how misbehaved she misbehaves and all that." I said, "Forget it." She said, "Vipin, do this scene. I'm telling you, do this scene. Do it because of this reason only." Yeah. And also, she told me something really which made me understand the teacher-student relationship. She said, "Vipin, she's been coming to my class for last 8 years. Wow. After 8 years, everybody says, why she comes back? She's not understanding anything you're trying to teach." She said, after 8 years, now I am seeing a slight difference in her. So that's a hope for me as a teacher. Oh wow. Can you imagine? So here we are, and we're going to talk about film Dhadak 2 and Sajia's journey to making this film, this beautiful film. जिन्होंने देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है? जिन्होंने नहीं देखी देख लो जाके. मैंने भी अच्छा काम किया है और विपिन सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है. So please go and watch. All the more reason to और watch. हमने भी ठीक ठाक ही किया है. इन्होंने ठीक ठाक काम किया है. एक फिल्म बना दी है बस, इसमें हम सब लोग एक्टर्स को अच्छा काम करवा दिया. कुछ नहीं, बस 3 साल लगे और क्या. So that's सिर्फ Only 3 years. so definitely I will start from you that you being a director, it's like, when did it come to you that you want to be a director? ओ बाप रे. वहाँ से शुरू करो. वहाँ से शुरू करते हैं. Can I talk in Hindi? Yes. मतलब बीच में ऐसे हिंदी, I English, shift जो from कुछ नहीं. मैंने actually I studied architecture and मेरे पापा 70s में फिल्म में नेपो किड नहीं हूँ मैं. नेपो किड नहीं हूँ क्योंकि पापा के बारे में बात कर रही हूँ. मेरे पापा रामानंद सागर, ही यूज्ड टू बी अ फिल्म जर्नलिस्ट इन द 70s मुंबई में. वो पटना से हैं, पूरी फैमिली पटना से हैं.
और रेडियो प्लेज लिखते थे। किसी ने बोला कि यार आप तो सलीम जावेद बन सकते हो, तो पापा ने मतलब तभी दौर था सलीम जावेद का, तो उन्होंने बोला ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉम्बे आ गए राइटर बनने। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद रामानंद सागर। एंड मतलब मेरा क्लेम टू फेम है कि पापा ने राम और सीता की कास्टिंग की थी। तो तभी वो ऐसा होता था कि असिस्टेंट्स जो रहते थे डायरेक्टर के होते थे, मतलब वो एडिट भी कर रहे हैं, वो डायलॉग भी लिख रहे हैं, कास्टिंग भी कर रहे हैं। सो वैसा दौर था तभी। तो खैर पापा ज़्यादा आगे नहीं जा पाए बियॉन्ड दैट, बट एक आई हैड चाइल्डहुड में बहुत सारी फिल्म की बातें घर पे होना, सेट पे जाना कभी कभार, तो एक एक्सपोजर था, वैसे चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया था। तो जब आर्किटेक्चर किया 4th ईयर कॉलेज में, शर्मिष्ठा रॉय नाम की एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर है जो मोस्टली आई थिंक धर्मा और यशराज की फिल्में ही करती थी, तो वो कॉलेज में आई थी। तो सेमिनार के टाइम पे मतलब जैसे वो एक्सप्लेन कर रही थी कि फिल्म के सेट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, तो आई गॉट वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो जैसे ही इंटर्नशिप ख़त्म हुई 5th ईयर में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फिल्म्स में ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर ठीक लगा तो यू नो देयर इज़ आर्किटेक्चर, एक ऑफिस जॉब तो है। बट दैट वाज 2006 एंड फॉर द नेक्स्ट 15 years आई वाज डूइंग प्रोडक्शन डिज़ाइन। आई मीन कुछ जैसे सेक्रेड गेम्स, लव स्टोरीज़, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है। बट एट द पीक ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन करियर आई मेड अ शॉर्ट फिल्म, इट वॉज कॉल्ड बेबाक। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है। ओके, गुड गुड। जियो हॉटस्टार पे है, जाके देखिए। हॉटस्टार पे है, देख लीजिए जो बाकी देखना चाहते हैं। सो देयर वाज अ टाइम जब अनुराग कश्यप के साथ मैं काम कर रही थी एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर मुक्काबाज फिल्म पे, तो वहाँ पे मैंने उनको काम करते हुए देखा। एंड मेरा जोक है उनके लिए कि अगर ये आदमी डायरेक्ट कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज ही डजंट मेक इट लुक लाइक you know, Like a big it's deal, yeah. it's Yeah. like a big thing. बहुत easy कर देगा। Rahul actually has been you know associate with Anurag, so he knows Yeah. कि वो इतना ना casually shoot करते हैं। ऐसे काफ़ी directors होते हैं ना जो मरने पे आ गई है वैसे काम करते हैं। So he made it look easy. तो मैं उसके 4-5 साल पहले ही मैंने लिखना शुरू किया था। There was a point जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम करती थी, और बहुत मंडेन और स्टेल होता है एक पॉइंट के बाद एडवर्टाइजिंग में काम करना। आपको पूरी लाइफ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सब कुछ दे देगा, बिकॉज आप पैसे बना रहे हो सर्वाइव करने के लिए, बट अंदर से एक जो आर्टिस्ट होने का सेटिस्फैक्शन या ह्यूमन होने का सेटिस्फैक्शन है वो भी नहीं रहता है। सो दैट मेड मी फील लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैं लिख रही थी, क्यों लिख रही थी पता नहीं, अपने जनरली अपने पर्सनल स्टोरीज लिख रही थी। काफ़ी सारे थे, बिकॉज यू नो व्हेन योर फादर स्ट्रगल्स थ्रू लाइफ एंड यू आर अ माइग्रेंट इन अनदर स्टेट, आपको जनरली चीज़ें दिखती हैं एक, एंड ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वो सब ऐड करता है, एंड आपको चीज़ें दिखती है, ज़्यादा दिखती है बचपन से ही। सो आई वॉज राइटिंग अ लॉट, बट आई डेंट हैव अ एम दैट अच्छा ये फिल्म बनाना है, ये करना है। एक स्क्रिप्ट एक्सीडेंटली मतलब एक लैब में भेजा, मुंबई मंत्रा का स्क्रीन राइटर्स लैब होता था, एंड इट गॉट सिलेक्टेड। सो वहाँ तक सिलेक्ट होते होते इट रीच्ड अ पिचिंग स्टेज, एंड पिच में पूछा कि आपने कुछ डायरेक्ट किया है, तो मतलब दैट वाज अ टाइम आई वाज वर्किंग ऑन मुक्काबाज ऑल्सो। सो वो थॉट आया कि यार कोई अपने को चांस तो देने वाला नहीं है, यू हैव टू गो एंड डायरेक्ट योर ओन शॉर्ट फिल्म टू बी एबल टू, क्योंकि थोड़ा सा जेंडर प्ले भी हो जाता है, लड़कों पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि फ़िल्म बना सकते हैं, लड़कियों पे थोड़ा कम होता है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट। तो आइडिया तभी आया, मुक्काबाज की शूटिंग ख़त्म हुई, मैंने अनुराग को बोला कि आई एम राइटिंग समथिंग। 4-5 दिन में एक 20 पेज का स्क्रिप्ट लिखा, एंड अनुराग को बोला आप पढ़ के बताओ, फीडबैक दो। उनको इतनी अच्छी लगी, उनको इतना पसंद आया, उन्होंने बोला मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो सामने से मतलब सडनली इट स्टार्टेड बिकमिंग रियल, एंड उन्होंने वी स्टार्टेड कास्टिंग, मतलब पैसे नहीं थे तभी, एंड अनुराग के पास भी नहीं थे। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कि अच्छा कहाँ से 10-12 लाख लगता है कम से कम शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अरेंज, एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड कास्टिंग फॉर इट, ग्रुप मतलब क्रू गैदर करना शुरू कर दिया। And Bebak it happened very casually, but it became, I mean, it was a compelling story, ended up, you know, going to festivals, और इतना प्यार मिलने लगा that it became a very known short film that time. Then, but direction का I think the idea, I think कहीं पे 2011-12 में कि
वो एक एडवर्टाइजिंग सेट पे ही हुआ होगा कि यार ये क्या चल रहा है शायद अगर ये सब बना रहे हैं फिल्म तो हम भी ट्राई कर सकते हैं. But I would say somewhere it would be like a carry forward of my father having that dream. It could be somewhere like leftover of that, and खुद का work satisfaction नहीं होना art direction में, and then to carry that. मुझे एक हमारा फिल्म इंडस्ट्री जैसे काम करता है, मुझे लगता है कि अगर सारे जॉब प्रोफाइल्स को इतना इम्पोर्टेंट है ना, एक डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर और एक्टर को इतना इम्पोर्टेंस मिल जाता है ना कि एवरीवन जस्ट ड्रीम्स ऑफ लाइक इफ़ आई बिकम वन ऑफ दोज 3 then I get love and attention. Otherwise everyone feels very sidelined in their job, which is quite unfortunate. You know, sound designers, editors, PDs, writers, everyone feels very left out in the corner. I think I felt that feeling somewhere 10-12 years ago, and I felt like I want to become a director, and you know, I want to write my own stories, and then probably it will I will get that validation, get that attention. It's a very empty feeling, though, I have to tell you. I'm in the right of the middle of the release, but जो personal reaction जो मुझे बेबाक में मिला था, वो अभी फीचर में मिल रहा है, वो ही वैल्यूबल ज़्यादा होता है. ऑफ कोर्स हमारी फिल्म ऐसे सैयारा वेव नहीं किया, और शायद करती तो भी 5 दिन के बाद सेम फीलिंग होती. Bebak won some 24 awards all over, you know, like at international festivals, and popular award भी मिला, फिल्म फेयर मिला बेस्ट शॉट. तो पहले तो लगा यार फिल्म फेयर बचपन में देखते थे टीवी पे, वो अवार्ड मिला है. तो दैट इवनिंग वाज सो सरियल, बट आफ्टर 2 days इट फेल्ट वेरी लाइक ठीक ही है. मतलब इवेंचुअली द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम समवन सेइंग कि योर फिल्म रियली इम्पैक्टेड मी पर्सनली, वो आई थिंक रिएक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है. सो ये डायरेक्शन का जर्नी है ओवरऑल अभी तक. Got it. Sir, when did you started when the seed came to be an actor? I've never known that. I grew up in a slum in Delhi. हमारे घर में मैं पहली बार NSD में लाइट ये वाली देखी थी. And I realized how bright your house looks when you see the electricity. तो बचपन में वो टीवी पे फिल्म आती थी तो बड़ा शौक था मुझे देखने का. सो आई यूज्ड टू, मेरे घर के आसपास की मेड सर्वेंट्स थी ज़्यादातर लेडीज़, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, वो घरों में जाके काम करती थी. तो वो घरों को जानती थी, तो उनको घरों में टीवी देखने के लिए लोग आने देते थे. तो मैं उनके बच्चों के साथ, वो उनके बच्चे मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं भी घुस जाता था फिल्म देखने के लिए. सो दैट्स हाउ आई गॉट फैसिनेटेड, एंड आई थॉट कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता था फिल्म देखना. देन वन डे my friends left, I was left behind. I couldn't go with them. तो मैं किसी घर में गया, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया. मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने उसका घर का गेट तोड़ दिया. बाहर निकलते हुए, दिल्ली में वो आयरन वाले गेट नहीं होते, मारा दीवार पे जोर से. निकल गया, डर गया मैं, डर के घर आया. And I still remember that feeling that ये लोग जो मेरे को अपने घर में टीवी पे नहीं टीवी देखने नहीं आने दे रहे हैं, ये एक दिन बैठ के मेरे को टीवी पे देखेंगे. Wow. That was my revenge. मैं बदला लेना था मुझे. तो बहुत साल लग गए. Good kind of revenge. Wow. What was the age? उस टाइम क्या age? यही young. 10-12. हाई स्कूल में था मैं उस समय. अच्छा. Got it. That's where it started for me. Wow. आपसे पूछो. तेरे छोटे-छोटे jokes. लॉन्च करो, लॉन्च. अब राहुल को लॉन्च करना पड़ेगा. नहीं, मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है, बट मैं एक्चुअली ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या करना है. वो जो कॉलेज का टाइम होता है, वहाँ पे यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको वैसा गाइडेंस नहीं मिलता है. आपको इतना पता होता है कि IIT नहीं करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है, कैट की एग्ज़ाम नहीं देनी जो दोस्त दे रहे हैं, वो आपको क्लैरिटी आ जाती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना है वो नहीं पता होता. तो देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. तो भोपाल में रेडियो खुला, तो सब मतलब कॉन्टैक्ट्स लगा के इंटर्नशिप ले लिया. तो वहाँ वॉइस ओवर और ये सब करने लग गए. तो वहाँ से पता लगा कि ये मतलब वॉइस ओवर में भी आपको एक्ट करना पड़ता है, आपको उसमें भी एक्टिंग है. तो वो आती नहीं थी, वहाँ से भगा दिया. फिर दूसरे रेडियो स्टेशन में गए, यहाँ से सीख के वो दूसरे में चले गए. यहाँ से ये सीख लिया, वहाँ जाके उन्होंने लगा दिया घी तेल बेचने में. हंटर प्रीमियम फ्रूट पंच, जोश का तूफान, ये रेडियो पे ये रिकॉर्ड कर रहे थे. करते करते फिर विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो. यहाँ से पता लगा कि
कि ये फील्ड क्या है, मतलब यहाँ पे आप इमेजिनेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो, आपकी आवाज़ को, आपकी स्किल को कैसे यूज़ कर सकते हो, थोड़ी डायरेक्शन मिली वहाँ से। बट ये नहीं पता था कि बॉम्बे आना है, कि अब इसका अगला स्टेप बॉम्बे होगा। तो वहाँ से फिर और कोई है ना, इंटरनेट भी तब आई थिंक 2009-2007 में है ना, इतना वो नहीं था कि यहाँ से सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो फैमिली में कोई नहीं था, फर्स्ट इन द फैमिली, तो वो भी डिस्करेज, बाकी सब बैंकर्स। तो वो बोल कि या तो बैंक में जाओ या फिर ये करो। तो किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे आना है। तो फिर ऐसे ही एक कज़न था बॉम्बे, वहाँ पे उसके आ गए, लैंड हो गए, और फिर पता किया कि क्या है, कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। और फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो लेट्स फाइंड अ विंडो कि कहाँ से इसमें घुस सकते। तो साउंड डिज़ाइन, मैं उसमें घुसा पहले, साउंड डिज़ाइन किया, साउंड डिज़ाइनर बन गए, एक फ़िल्म कर ली। फिर रियलाइज़ किया व्हाट शी इज़ सेइंग ना, कि आपको फील कराया जाता है कि आप ना, आपका जो पोटेंशियल है, यू वांट टू टेल मोर स्टोरीज, यू वांट टू टेल, बट साउंड में एक लिमिटेशन हो जाती है आपकी, ठीक है। आपको मतलब एक पॉइंट के बाद प्रॉबेबली दे विल नॉट टेक योर सजेशन और दे विल नॉट यू कि आपके पास ना ठीक है यार, आप डबिंग कर लो, डिज़ाइन कर लो, बस उसके बाद। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ फिल्म, इफ़ यू वांट टू राइट, देन वो वहाँ पे एक सीलिंग है। तो फिर सोचा अब क्या करें, तो फिर थोड़ा प्रोडक्शन कर लिया, कि अब उसमें घुसते। तो 1 साल प्रोडक्शन भी किया, वो किया, उसमें फिगर आउट किया कि यार ये तो बड़ी जालिम दुनिया है, यहाँ पे तो आपको बोलते हैं कि पैसे मत दो, पेमेंट नहीं करना किसी का, मतलब इसमें रह नहीं पाएंगे, इतने हार्टलेस अपन है नहीं। फिर ट्राई किया, फिर इनके पास गए, अनुराग कश्यप के पास, जिनका कोई नहीं होता, उनका अनुराग होता है। तो उनके पास चले गए। तो फिर उनके साथ आई थिंक 6-7 प्रोजेक्ट किए, राइट फ्रॉम सेक्रेड गेम्स, वहाँ पे इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वहाँ से आई थिंक मन मर्जिया, फिर सेक्रेड गेम सीज़न 2 भी किया था हम लोगों ने, फिर चोक्ड, फिर लव स्टोरीज़, फिर गोस्ट स्टोरीज़, फिर एक और फिल्म आई थी उनकी जो कोई नहीं एसोसिएट करना चाहता, जो कोई नहीं एसोसिएट करना। मोहम्मद। तो पूरी फिल्म की एक्चुअली ट्रेनिंग वहीं पे हुई, उनके साथ ही हुई। व्हाट शी इज सेइंग ना, ही मेक्स इट सो इजी फॉर यू एंड इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब। एंड सेकंड, सारा डिसीजन आप पे छोड़ेंगे, वो आएंगे सेट पे सीधे, वो वहीं लिखेंगे, बाकी आपको ही लेट यू टेक द डिसीजन। सो वो जो एक डर रहता है ना कि यार मैंने डिसीजन ले लिया, अब क्या होगा, मतलब वेदर इट विल वर्क फॉर हिम और नॉट, और ये वो कुछ नहीं। जब वो पूछेंगे तुमको क्या करना है, फिल्म मेकर बनना है ना, टेक द डिसीजन। तुम कास्टिंग कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें कास्टिंग पे लगाया है एंड मैं एकदम से यार दिस पर्सन विल वर्क फॉर हिम और नॉट, लाइक क्या होगा ये, ही विल ब्रिंग इट आउट ऑफ यू, वो उनका टैलेंट है, बट ही विल मेक श्योर ही विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। सो पूरी ये जो ट्रेनिंग है कि एक्चुअली लाइक हाउ फिल्म इज मेड राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइटिंग टिल द फाइनल। मेरा एक्चुअली फिल्म स्कूल वही है, अनुराग कश्यप, वहाँ मेरा पूरा फिल्म स्कूल हो गया। So you both have worked with Anurag, and it has been a big influence on your life, right? Yeah. So while making this film, was that coming in between कि उनके जैसा या उस जैसा इंसान का, या बैकग्राउंड में कई बार, जैसे when I started as an actor, मेरे दिमाग में आता था कि will Barry get impressed by this? Am I justifying what he wants to teach me? So वो बैकग्राउंड वो बहुत टाइम बाद हटाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत टेक ओवर कर रहा था एक्चुअली। So I'm just asking that. सबसे पहले तो उसी से बचना चाहिए, लाइक डोंट ट्राई टू मिमिक योर लाइक मेंटर और मास्टर और whosoever। वो बिल्कुल, मतलब वो फिर आपकी इंडिविजुअल वॉइस नहीं है, फिर वो आप उनको कॉपी कर रहे हो फिर। एंड वो क्या होता है, वो एक टाइम बाद वो ही भगा देते हैं अपने वजह, तुम्हारा हो गया इधर, बोलता है ये 2 साल अब निकलो। Yeah. Kicks you out after 2 years. Yeah, that's very powerful ना, to tell कि जाओ भाई, हो गया, मैं अब तुम्हारा पेरेंट नहीं हूँ, अब तुम अपने आप कर लो। Yeah. It's very weird that we came from Anurag Kashyap school and made a film with Dharma. So it was That's actually good also. I mean, like, you know, that ये was जो good. lines हैं ये blur हो रही है, बहुत अच्छा है। हाँ, but the thing is we made the पता नहीं मीडिया में क्या क्या मेरे पास बोला गया है, but we've made the smallest budget Dharma film. Yeah, So we've made in the similar AK format only. Yes, ऐसा नहीं yes, कि हमने जाकर के बड़ी Definitely, rocky there was a great learning. That is Yeah. why you could make this Yeah, film also. yeah, वो absolutely. influence तो है कि social influence है, film making का influence है, वो वैसे style नहीं है, वो कैमरा इतना glossy नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो धर्मा की फिल्मों हमने देखा है।
वो नया है, कुछ फ्रेश है, और वो दिखता भी है कि कहाँ से आ रहा है. बट माय पॉइंट इज कि वो वाज इट देयर, ही इज जस्ट सिटिंग, ही माइट वॉच द नहीं, फिल्म not at एंड ही all, विल से not at all. ये क्या बनाया है साजिया. Not at all. But one of the nicest feeling when the film got completed, and of course we wanted to show it to. Oh, sorry. मैं पकड़ के रखूँगा. Was that when Anurag saw the final edit, after the first half, he just jumped. He was crying for like half an hour. After half an hour of the film, he was crying throughout Oh, wow. till the midpoint also. Wow. And जैसे ही interval हुआ, he's like, you guys know that it's adaptation of a Tamil film, right? So he got up and he looked at Rahul and me and he's like पता नहीं मैं बाहर बोल पाऊँगा कि नहीं. मैं बोल सकती हूँ अब, ठीक है, रिलीज हो गई है. He's like, this is better than Periram Perumal, which was a big compliment because Mari is a great director and the original film is. We love the original. Yeah, original film. So he said that, and the second thing he said, can I say this? The censor board आगे नहीं जाने देगा. So he gave us a warning saying कि you guys are going to land up in trouble. But I mean, of course, he was telling us as a protective thing कि, and his reaction, he was crying. I started crying. Rahul started crying because, like, when you work with someone and you respect their, opinion, and him saying that and making someone cry is a big deal in Yes. films. Yeah, वो बस वही feedback And था. he's seen a lot of film and he's a knows. pure cinema buff. मतलब Yeah. वो एक्चुअली उससे बड़ा सिनेफाइल है. buff वो फिल्म को उसके लिए नहीं देखेंगे कि तुमने ऐसी क्यों बनाई. वो ये नहीं बोलेंगे तुमने जैसी बनाई, वो उसका इंटेंशन देखेंगे. Yeah. और वो तो अब जब मीडिया में बात आ रही है, लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि यार ये तो हिस्टोरिक फिल्म है, पहली फिल्म है जो मेन स्ट्रीम में दलित पॉलिटिक्स, कास्ट, एंटी कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही है. बट अनुराग ने हमें उस दिन ही बोल दिया था कि तुमने मेन स्ट्रीम में ये फिल्म बनाई कैसे. इट्स नॉट हैपेंड. ये तो आई एम टॉकिंग टू माय टीम, ये कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दिस, और ये आ कैसे गई, रिलीज कैसे हो गई. इट्स लाइक, and hats off to you guys that you were just purely sitting on it and you wanted it to be out. नहीं तो that's what I keep saying to my student. Only one thing matters is your action. You keep taking action every day, and something moves. And this is what I see with you guys also. कि नहीं तो everyone has acted so well. The film design is so well. Emotionally it touches. It's something which opens a lot of paradigm for new directors कि हम अब फिल्में बना सकते हैं ऐसी. मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम भी बना सकते हैं, नहीं तो वो फंस गए थे कि ऐसी फिल्में कौन लेगा. मुझे आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड. अभी आज 8वां दिन है, मतलब सेकंड फ्राइडे है. मैक्सिमम इंडी फिल्म मेकर्स के मैसेज आए मुझे. Devashish Makhija, Payal Kapadia. Wow. I was just There's so much surprised support, that yeah, a from film everyone. that is called Dhadak 2, which by the way we didn't want, it was still, she went and saw the film, she posted about it, she messaged me that it made me so emotional, I cried, I felt angry while watching the film. So this is like meeting of the two worlds, right? Yeah. A film that Dharma is producing and getting out in theatres, Payal Kapadia is talking about it. Yeah. And Anurag called and said कि everyone, all the filmmakers are calling me and saying कि ये film बनी कैसे, like, you know, of course because they all don't have access to me. Yeah. They don't know me. अच्छा, हम जब बना रहे थे हमें नहीं लग रहा था ऐसा इतना कि नहीं हम लग क्या, रहा था. हम लोग ठीक है ये होता है एंड हम बना रहे हैं वो. ये जो एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि ये बनी कैसे मेन स्ट्रीम में, ये अभी हमें मिल रहा है. Right. लाइक व्यूअर, तुम भी सोच रहे हो, हम भी सोच रहे हैं कि ये हम तो बना रहे थे यार, ये तो वी आर मेकिंग दिस बिकॉज इट्स हैपनिंग अराउंड अस एंड वी वांट टू टेल दिस स्टोरी, दैट्स ऑल. वो इंटेंशन था. वो सोचा ही नहीं था कि आगे रेपरकशंस क्या होंगे, क्या होगा, क्या इस फिल्म की आगे जर्नी होगी बनने के बाद. Yeah. वो अब पता लग रहा है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट थी अभी. But you never thought कि ये फिल्म रिलीज होने में मुश्किल होगी या नहीं, बनाते वक्त अब वो कभी सोचना भी नहीं चाहिए. हाँ, true. That You is. can reach to that level. Yeah. That's the best thing, na? Yeah. Then you're surrendering to the process surrender also. to the process, Then yes. you're surrendering to the process. Otherwise, you're out of the process and you're just calculating कि maths इसकी और वो. Then it will be at a surface level. आप सारा मीट निकाल दोगे ये सोच के कि आगे क्या होगा पता नहीं censor करोगे, क्या, हर खुद ही हाँ, सेंसर बेसिकली सेल्फ सेंसरशिप में नहीं घुसना चाहिए. नाउ हमारा प्रोसेस 5 महीने का था फिल्म को सेंसर बोर्ड से निकालने का. बट अगर इफ दैट इज मेकिंग राहुल एंड मी और एनी अदर फिल्म मेकर थिंक कि यार हम नहीं ये तो नहीं बोल सकते हैं,
we are not going to do that for our next film also, because the moment you do that there is no point in telling stories, you have already lost your voice. तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए. एंड कितने फ्रेंड्स ने आके पूछा कि मतलब ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ क्यूरियस, कुछ चीज़ें ऑलरेडी मीडिया में हैं कि क्या काटा ये वो जो भी है. तो हमने बोला फिल्म डाइल्यूट नहीं हुई है, जो हम बोलना चाहते थे वी आर स्टिल सेइंग दैट. एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आगे जो भी हो, जैसे ईरान में फॉर देयर इज़ अ डिक्टेटरशिप फॉर लास्ट 4 decades नाउ. तो उन्होंने तरीका, फिल्म मेकर्स ने, आर्टिस्ट ने, सिंगर्स ने, पोइट्स ने तरीका ढूंढा है चीज़ें बोलने का, विदाउट सेइंग लाइक अ सेपरेशन. अगर आप लोग ने असगर फरहादी की फिल्म देखी है, इट्स एक्चुअली अबाउट अ कपल हु सेपरेटिंग, हु इज डिवोर्सिंग, बट दैट फिल्म इज एक्चुअली अ ग्रेट कॉमेंट्री ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू पीपल. सो आप तरीके ढूंढते हो. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी डजेंट अलाउ यू टू से. आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट आप चाइना में एक टोन के ऊपर आपकी फिल्म डार्क नहीं हो सकती है. इट हैज़ टू बी ब्राइटली लिट. That is a kind of censorship they face. Every film should look happy, look bright. It should look bright. तो और एडिट नहीं, सॉरी, स्क्रिप्टिंग लेवल पे यू नो फिल्म्स सबमिट करनी पड़ती है. I think we'll also reach that stage. So you have to find ways to tell what you want to tell. True. And as artists, whether आप actor है, writer है, director है, you'll just have to find ways around it. Otherwise सबको वो होगा ना कि we are going with the flow. जो सब कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं. Yeah, easier said than done. मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे को कुछ और करना है, पर अल्टीमेटली हम पहुंच जाते हैं वहीं पर ही जो हमारा कचरा है. To be very honest. So when she asked you for the character, how was that feeling? क्योंकि ये थोड़ा मतलब आपने ऐसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं प्ले किया है मैंने. मेरी पहली कन्वर्सेशन बहुत कमाल की थी. अच्छा. Long ago I was doing a film with Anjum Rizvi. Shazia's sister was one of the production assistant. We became friends, we chatted a lot, and one day she said, "Arey, my sister wants to become an actor, she wants to chat with you." I said, "Sure, why not?" Done a little bit of acting. Shazia called me and we chatted about acting, and I said, "Shazia, whenever I do something, I'd love you to come and I'll let you know." Yeah. हमारी ये conversation पहली थी. Then बेबाक के लिए she called me. I didn't even ask anything. I said, "किधर पहुँचना ये बताओ." And I was surprised that she's directing. I said, "Arey, you wanted to act?" Then she told me she went to France for some. Yeah, I had gone for a workshop to France. Basically, मैं filmmaking workshop करना चाहती थी. There was a film called Dammaro Dam. I had done art direction of that film. वो मेरी first independent film थी as an art director. तो जिस दिन रिलीज़ हुई उस दिन इतने मैसेजेस आए, कभी इतने मैसेजेस आए नहीं थे. तो मुझे लगा आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, अब इसके आगे मैं क्या करूँ आर्ट डायरेक्शन में. सो आई वाज लाइक लेट मी नाउ गो एक्सप्लोर. आई वांटेड टू डू अ स्क्रीन राइटिंग कोर्स, बट जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया था उनका व्हाटएवर लाइक it was full, the course was already full, and they told me that do you want to do an acting course. श्रीधर राघवन जो स्क्रीन राइटर हैं वो फ्रेंड है मेरे, तो उन्होंने बोला था कि the journey for a writer and an actor is very similar of finding themselves in the character. तो उन्होंने ये बात मुझे बोली थी, तो आई वॉज लाइक तो मे बी आई शुड ट्राई एक्टिंग. आई एक्चुअली वेंट टू डू एक्टिंग टू लर्न राइटिंग. दैट वाज एंड इट वाज राइटर्स आर एक्चुअली क्लोजेटेड एक्टर्स. क्योंकि हमको हर कैरेक्टर जब हम लिख रहे हैं हमें प्ले करना पड़ता है, बस हम लोग वो एक बंद कमरे में करते हैं. And you do it with from everyone point of view. Yes. Exactly. हम वो मिस कर देते हैं कई बार. हम कई बार अपनी तरफ से ही देखते हैं, and that's what I keep telling कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़े तो हमारे को सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. Then we understand where we fit in the part of whole. Well, that is a major issue with Hindi cinema. When I watch our movies, one of the things I really feel that majority of the times actors are only doing their acting. Yeah. And it Not affects listening. the film. They are not working for the film, they are working for themselves. I see that in the major actors, well-known, well-established actors, I see they are doing their own acting. उनका सिर्फ अपने कैरेक्टर से ही लेना देना, बाकी फिल्म से कोई लेना वो पार्ट ऑफ द होल नहीं है. One of the things that पहले की फिल्मों में बोला जाता था ये एक्टर उसको खा गया. हाँ, which was like Makes no- that's not that doesn't do anything to the film. आपका एक्टर हु इज गिविंग विल मेक श्योर कि आपके सामने जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो. बिल्कुल. But that's why when you told me that you went for acting class, I immediately went, oh my God, your commitment to the whole filmmaking is so huge. So I
that's when I told you I will definitely do a workshop for you. Rahul makes fun of my acting. By the way, he's smiling. he's I seen a couple of my चलो, short अभी films as an मैं कर actor. ही नहीं सकता एक बार cast करते हैं शाजिया नायक नहीं सौरभ भी तो है ना तीनों एक्ट करते हैं हम एक फिल्म में but that's when I committed to you that I will do a Meisner introduction workshop for Yeah. you no matter what happens whenever there is an opportunity because your desire to kind of understand and this whole passion for films I was like यार ये तो शेयर करना पड़ेगा अपने It's all part of the same Yeah, thing. मुझे it's- लगता है it's- कि somewhere मुझे बहुत खुशी हो रही है जब से धड़क रिलीज हुई है एंड जब से when we were showing the edit also to people they're like यार एक बहुत ही यूनिक चीज़ है फिल्म के बारे में एक तो एक भी चाहे वो टर्शरी एक्टर भी हो भोपाल से बैकग्राउंड में कोई टच से मस नहीं लगता है ऐसा लगता है दे बिलोंग टू दैट वर्ल्ड Yes, yes. दैट इज That's the biggest so achievement, important yeah. in everyone's performance you feel the truth in their performance कि ये प्ले कर रहे हैं और वो वही इंसान है so मेरे लिए as a director is the biggest compliment and somewhere learning that little bit of craft of acting I think has come to help because directing actors is such a sensitive thing मैं एड फिल्म पे मोस्टली देखती थी और फिल्म सेट्स पे भी देखा है कि एक रिस्पेक्ट जो डायरेक्टर को एक्टर की करनी चाहिए एक तो वो होता नहीं है तो उनको लगता है कि अरे ये तो एक्टर है ना ये तो हमने लिखा है लाइंस हम बोल रहे हैं ये तो सिर्फ जाके कर रहे हैं नहीं आप यू कैन राइट द ग्रेटेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट इफ समवन डजंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड डजंट पोर्ट्रे इट लाइक दैट आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी सो दैट रिस्पेक्ट दैट ट्रस्ट इज मोस्टली नॉट देयर ऑन अ फिल्म सेट इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट So what is your way of building the trust with the actors? Do you have any way or you just well, no, you more tell than me. workshop I feel like just talking to them Yeah. टॉकिंग टू देम एंड नोइंग देम एज पीपल लाइक अगर मैं विपिन के साथ काम कर रही हूँ आई वुड वॉन्ट टू जस्ट टॉक टू हिम एज मच एज पॉसिबल बेबाक के टाइम पे सारा हाशमी प्लेड द लीड गर्ल इन द फिल्म and Sarah had done like she was doing some TVF sketches that time she had done a couple of film I think Zoya के फिल्म में दिल धड़कने दो में she was playing a character ऐसे छुटपुट रोल्स किए थे सारा ने I came from a very lower middle class Muslim background. Sarah came from a very different upper class Delhi Muslim background, though we were both from the same community. So when we started talking, I realized कि एक distance है हम दोनों में. And हमारा कुछ 14-15 दिन का workshop था. I think 7-8 दिन हमने सिर्फ बात की. And we found a middle ground where we realized because the film was talking about the parda culture and how it disturbed her and how I had a very clear stand on it and वो बात करके पता चला कि I have to psychologically be able to understand a person, an actor. Yeah. उसके बाद workshop है जो है वो सब तो हो जाएगा, it will happen. Yeah. But first of all you have to know your actor. That is the Yeah, most that is important thing You as a workshop- person. Workshops are very As good. a person. Gangs of Wasseypur मैंने 10 दिन workshop किया था सब actors साथ. अनुराग asked me to do the workshop. तो 10 दिन में जो bonding हो गई थी ना, that reflects in the film. Yeah, it comes Workshop out in the helps film. you to. And Yeah. the other problem Break is the ice Bombay also. में हम workshop के नाम पे ना हम लोग Games nonsense खेलते हैं, करते हैं. games Nonsense खेलते हैं. करते हैं. वो games खेलते हैं हाँ. It's pointless यार. Yeah. Workshops for a film, the workshop should not be about the film. It should be about something else. मैं SRFTI पढ़ाने गया था एक बार. मुझे बुलाया था कि do a workshop for directors how to work with actors. So I imagined a situation and I gave the situation to the directors. I said, okay, here is a scene where your main character, his house is burnt, he's lost everything. His wife is gone, his child is gone, his property, everything. He's just lost everything. His burnt house is right there. He comes and looks at it. What will you do? What will you do with the actor? तो किसी ने बोला सर मैं जाके पूछूंगा नाश्ता कर लिया. जब वो सेट मैंने बोला जब सुबह एक्टर आएगा तो तुम लोग क्या करोगे एज ए डायरेक्टर. किसी ने बोला सर मैं पूछूंगा और नाश्ता वास्ता ठीक हो गया कोई प्रॉब्लम तो नहीं. किसी ने बोला मुझे लाइंस तो आपने कुछ चाहिए कुछ हेल्प चाहिए कॉस्ट्यूम. आई सेड you will not go near that actor that morning. Let him be in that zone. Why would you go and ask him some stupid question or you give your gyan? If you've asked someone who's sensible enough to understand the situation, chances are you will stay away from him. Let him be in that zone so that he builds his whole energy for this scene. So working with actors is not an easy thing and it's fun with you because you understand. Remember जब हम song shoot कर रहे थे, I was not connecting with it because there was such a huge gap in between. अब वो energy और यहाँ की energy ज़मीन आसमान का फर्क था. When we're doing the patch Yeah, shoot. that's why when I said to you, I said, Sarja, come and stand with me. I was Stand in dancing front with of him. me.
And immediately it changed everything because actor-director relationship is a very It's a marriage. It's a marriage. It's a very personal, intimate relationship actually. And the process is more beautiful than the destination. It's Yeah. like the whole bond. Like I'll actually take off from what you were saying ना कि सुबह बात भी नहीं करना चाहिए. Day one of shoot, जिन्होंने फिल्म देखी है, जब नीलेश सिद्धांत का कैरेक्टर एडमिशन के लिए जाता है, that was the first day, first scene that we were shooting. That he's, as a person who comes from the Dalit community, he feels very nervous about, and like, for him to go to a big law college is a big deal. So he's nervous, he's sitting outside, then he goes inside, he's talking to the principal who's kind of in a humorous way taking his case. वो scene shoot कर रहे थे and Siddhant entered, and there is this thing na कि actors come with entourage. So Siddhant came with 3-4 people, and Siddhant came with, he had a Starbucks coffee in his hand. So I took him aside. I said, "Bhai, क्या कर रहा है?" I said, "We are about to shoot in another half an hour, 40 minutes." I was like, "एक काम करते हैं." I took the Starbucks coffee from his hand. I said, "I'll give you chai, but like just prep first." And then I told him, of course we had done, we were And already. he understood that. He understood that. He understood did what she's not trying to say. take an offense Yeah. कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो. But I'm like, if you're in the moment, in the character, half an hour before shooting, you cannot be drinking Starbucks coffee. I mean, आप सामने से भी, but this is okay for everyone have their own process. He's also, a new actor, learning. And he was very open to, and in fact, all our actors, वो नया बंदा है, but ये दोनों भी हैं. The thing is, as an actor, if you surrender to your director, and if the director is also worth surrendering to, it will be seen on the screen eventually. That you have to agree to each other's process of how it works. It can't be a one-way thing. Did we surrender to you? Absolutely. It's seen on the screen. Yeah. I remember Ranjana, I had a very small scene. This is the director-actor relationship. And I hardly had any scene with Dhanush. And there's this emotional scene when his news of death comes. And I'm watching on television. Oh, I'm eating, and I'm watching eating. on TV. Yeah. तो मैंने बोला यार, मैंने धानुष के साथ एक भी सीन नहीं किया था, कोई ऐसा रिलेशनशिप था नहीं, कुछ एक्टिंग नहीं की साथ में, टाइम नहीं बिताया. He's a big guy, I'm like, just another actor on the sets type. तो मैंने आइडिया लगाया मिर्ची डालूंगा, हरी मिर्ची बहुत सारी खाने में. तो मैं आनंद सर को बोला, मैंने सर मैं मिर्ची डालता हूँ हरी वाली बहुत सारी खाने में, तो अपने आप ही नेचुरल आंसू आ जाएंगे. मैं क्या करूँगा, इतना इमोशनल सीन है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी खा रहा हूँ और शौक चेहरा बनाऊंगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा उससे. कभी कभी तो सामने क्यू के लिए भी नहीं होता है. माचिस दिखाई थी दर्शील के लिए तारे जमीन पे, तो सर दर्शील मैंने कहा पागल हो गए यार, ये दर्शील वो खड़ा होकर लेके आओ उसको. लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एक्टर्स नीड टू सी द फेस, सी द रियल पर्सन. मन मर्जिया में मैं एक एक्टर नाम नहीं लूँगा, उनका कंधा बनाऊँ मैं, ठीक है. उनका ओवर द शोल्डर शॉट था, वो चले गए, ये सामने थे, तो मैं उनका कंधा बना था, उनका शर्ट इतना पहन के बस यहाँ तक. बहुत फर्क पड़ता है. The real person makes a huge difference. So आनंद राय बोले नहीं सर हो जाएगा, कर लोगे आप ऐसा. तो मैंने बोला यार ये कैसे करूँ. मैंने अपने मेकअप वाले को कहा दिखना मत मेरे सामने, तू चला जाए यहाँ से, कहीं लॉक कर ले अपने आप को, मेरे सामने मत आना, मैं ग्लिसरीन ले लूँगा. And I didn't want to. I was like यार नहीं यार मज़ा नहीं आएगा. You know what happened was something very funny. वो चारपाई लगाई उन्होंने सेट पे, तो जिस पे चारपाई बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ. I was sitting there. Anand L. Rai came, and Anand L. Rai is this big teddy bear, right? ऐसा हाथ पकड़ा मेरा, जी ऐसा किया. The moment he touched me, something happened. And I said to him, sir जाना मत अब आप. He said, what do you mean? I said, sir बैठे रहो. लाइटिंग हो रही है, कहीं मत हिलना मत आप, बस ऐसा हाथ पकड़ के मेरे बैठे. And he sat with me, and though I bawled in the scene. Oh, wow. Because that energy Yeah, from yeah, him, yeah, so yeah. beautiful. Sometimes his touch, his warmth. So you never know what the director-actor relationship, where it can go, and how you can't. It's beautiful. Actually, it's a very beautiful thing. Truffaut का जो actor था, he wrote a book on him, ना? This guy, Antoine Duanel. Yeah. So this director who found this boy who came from a orphan 400 family blows. or something. French film. उसको इंटरव्यू किया, उसको फिल्म में कास्ट किया. That kid grew with him in his. He was there in all his films, and he wrote a book on him. Yeah. The director wrote a book on this actor who grew in his films actually. Yeah.
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगली फिल्म बनाऊंगी तो जो मेरे आई हैव 12 एक्टर्स, वी हैव 12 एक्टर्स इन अ फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू वर्क विद देम ओनली बिकॉज वो इतना bonding होता स्पेशल है, बॉन्ड yeah. हो गया है. एंड आई थिंक अगर वो नहीं हुआ एक फिल्म में तो कहीं कुछ लॉस है एक्टर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी. नहीं, इनके साथ क्या हुआ था, आई रिमेम्बर, एंड का कैरेक्टर भी वैसा था, कॉन्स्टेंटली एक जगह देखते रहते थे एंड हम बात कर रहे हैं, फिर हम दोनों एक जगह सुना कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं, बोला सर टेक करके देखते तब पता लगेगा कि सुना कि, और मोस्टली सुन लिया होता था. बट वो उनका प्रोसेस करने का तरीका था, इट वॉज हिज प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोसेसिंग एंड डूइंग. लाइक प्रॉब्ली उतने बिकॉज वो कैरेक्टर भी वैसा था कि वो उतना एक्सप्रेसिव हो कि हमें हाँ अच्छा ओके लेट्स डू दिस, ये ज़रूरत नहीं थी करने की, बट हमें पता लग जाता था कि ही इज़ प्रोसेसिंग. एक्चुअली जब आप एक्टर को मिलते हैं और नरेट करते हैं ना, तो जब वो नरेशन पे रिएक्शन करते हैं ना, उससे आपको पता लग जाता है वेदर दे विल बी करेक्ट फॉर द रोल और नॉट. इनका रिएक्शन था, इनको मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी जो पता नहीं फिल्म में अब इतनी उठ के आ रही है कि नहीं, कि ये एक किलर है जो हर किल के बाद ही रिपेंट्स इट इमीडिएटली एंड ही क्राइज. एंड उन्होंने ये सुना, उन्होंने बोला आई एम डूइंग द फिल्म. So every actor, I had tears in my eyes. Yeah. I'm like, really? Yeah. Wow, that's a very good. And then shift you, I for remember you waited for her to leave the room and then इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कैमरा पे नहीं बोल सकते. ये क्या लिख दिया है तुम लोगों ने? वो आपको टच कर जाता है and then you play from that. अगर कुछ भी नहीं टच कर रहा है इमोशनली या कुछ भी ऐसे जिसके लिए आप जीना चाहते हैं, वो छोटा सा मोमेंट भी हो सकता है. अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप ऊपर से ही करते हैं, वो पता लग जाता है कि आप ऊपर से ही कर रहे हैं. कुछ तो कनेक्ट करना ही चाहिए. वो कई बार कॉस्ट्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है. दूसरा एक्टर हो सकता है, कॉस्ट्यूम हो सकता है, एनीथिंग कि उस जगह पे जाके शूट करेंगे. रियली it has to excite your soul, and something has to do, and then you are something from that, that's a seed of even when we are writing, we are taking almost a year to write, जिसमें क्या होता है कैरेक्टर्स अलग अलग लिखे जाते हैं, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी लिखी जाती है, उनका एक क्वेश्चनर होता है जो हम लोग पूरा लिखते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसके घर में कौन होगा, क्या होगा. वो करते 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 पहले तो हम पता करते हैं कि कैरेक्टर क्या है, उसके बाद उसके सीन्स लिखते हैं. मतलब व्हेन वी आर नरेटिंग द सीन ना, हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि हमने ये सवाल जो थे कैरेक्टर के ये बैक स्टोरी किया हुआ है, हम सिर्फ सीन नरेट कर रहे हैं. बट ही वाज एबल टू लाइक यू नो गेज दोज लिटिल नुआंसेस, एंड वहाँ हमें पता लगता है फिर कि नहीं ये करेक्ट है. हम लोग सही सोच रहे थे. ये बहुत सारे एक्टर्स डायलॉग चेंज करते हैं, आई हैव नोटिस दैट, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली. आई टेल यार, राइटर्स ने बैठ के बहुत टाइम बताया भाई, लिखा है, डोंट प्ले विद इट, डोंट ट्राई टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, बिकॉज एक लाइन का मतलब है, इट्स रिटन इन अ वे एंड यू डोंट चेंज इट. दैट्स द यू नो दैट्स वेयर द राइटिंग. With Vipin तो I think हमने बेबाक में साथ में काम किया था. Like he said, there was somebody else who was supposed to play the role and they had to drop out last minute. मैंने इनको कॉल किया, ये फ्लाइट में एयरपोर्ट पे थे, फ्लाइट में बैठने वाले थे. Immediately I emailed the script to him and he got off the flight and he said yes to it. एंड मुझे इनके साथ आई थिंक एक आधा दिन हमने कुछ वर्कशॉप किया था. आप सिर्फ आके सारा और शिबा चड्डा से मिले थे और सिर्फ रीड किया, वर्कशॉप भी नहीं था, ऐसे रीड किया. ये बेबाक की बात है, ये बेबाक की बात है. फॉर दिस फिल्म आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड यू नो नीलेश लड़का है, ही कम्स फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी एंड आई वांटेड टू प्ले द फादर, बहुत स्पेशल रोल है ये वो. उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ. He did not even ask me, he's not seen Periram Perumal, he's not read the script. He's like, if you are feeling it is correct for me. So एक trust, एक film की तो वो दूसरे में भी आ गई. That kind of relationship is so special. So I know कि now this is for life. This is for life. It's like you know they trust you before knowing कि आपका एक vision या आपका voice जो है वो इंसान पहले से उसको trust करता है. So that helps and that translates on the screen. It shows in the film. It shows in the film. You can also. actually, watching a film, you can tell what the atmosphere might have been on the sets. Yeah. Yes, actually very easy to tell. I feel that is the director does that a lot. Absolutely. It's the director how open and friendly and motherly in a way to hold everyone together, hold the space together, and let them breathe also.
and also have ये मेरा frame है, इससे बाहर मत जाना, play in that. That's very beautiful thing, and that's what I see when I see the film. I see how can everyone be so good. Like कुछ तो मतलब कोई एक्टर छोटा सा वो पापा जो छोटा सा बन के आया है वो जो बहुत खतरनाक था वो। हाँ, that fake father. yes and he's I'm like Hilarious. Yeah. बस ही सेइंग दिस कि मुझे वायलेंस से डर वायलेंस नहीं पसंद है उसी में मजा आ जाता है अच्छा वो बड़े कमाल के थे ना वो भोपाल के हैं। भोपाल के हाँ, हैं भोपाल के। और वो एक बार गुटखा उनका चला गया तो उसके बाद आपको हाँ या ना या कुछ उनका पता नहीं लगेगा तो आप जो बता रहे हो So he's not reacting when you're telling him to reacting. यही है हमें जो मिल रहा है उनसे रिस्पॉन्स वो मिल रहा है can also ask question yes शादी की आपकी सिंपल देखी है दिखा है सो बस ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने बनाया है उसके आधार पर मैं पूछना चाह रहा हूँ हैव यू ऑलवेज बीन अ रेबेलियस पर्सन इन योर लाइफ आई थिंक क्या होता है ना मतलब आई डोंट वांट टू लाइक ब्लो माई ओन ट्रम्पेट की यू नो मैं बहुत क्रांतिकारी हूँ ऐसी बात नहीं है मुझे लगता है हम जिस तरह से हमें घर पे रेस किया जाता है तो दैट अलाउज अस और डजंट अलाउ अस टू टॉक आउटसाइड तो मेरे पापा ने जब मैं 8 साल की थी माई फादर वॉज अ फैन ऑफ इंदिरा गांधी he was I mean in terms of not let's keep emergency aside but like as a woman who had the guts to go out and become the prime minister of a country at a time जहाँ पे US में अब तक नहीं है कोई president तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि लाइफ में कुछ करना क्योंकि जनरली बच्चियों को बोलते हैं कि शादी करो तुम किसी घर जाओगी कहीं पे खाना बनाना सीखो यू नो आई थिंक फीमेल women will be able to relate to this तो मेरे पापा ने बोला शादी सब करते हैं सबकी होती है यू बी समथिंग तो वो बहुत ही यंग एज पे बोलना ये बात वो मेरे दिमाग में रह गई एंड दैट इज़ अ रीज़न आई लर्न टू टॉक टू माई फादर एंड टॉक बैक टू माई फादर और हमारा क्योंकि समाज यू नो पेट्रियार्कल है हम बोल नहीं पाते हैं पापा के अगेंस्ट और जब आप पापा के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हो ना आप स्कूल में टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हो आप कॉलेज में अपने प्रोफेसर के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हो आगे जाके गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हो यू स्टॉप क्वेश्चनिंग थिंग्स बिकॉज आपको सिखाया जाता है कि एल्डर्स जब बोल रहे हैं ना तो वो एल्डर्स है वो सही आप गलत हो बच्चों को एक्चुअली इंडिविजुअल की तरह थिंकिंग ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है सो दे ग्रो अप लाइक दैट सो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने वैसी सीख मुझे दी नहीं थी इसलिए मैंने उनको भी क्वेश्चन किया मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से ही लड़ती हूँ मे बी ही रिपेंट्स इट ऑल्सो तो इफ़ यू क्वेश्चन थिंग्स एट अ यंगर एज यू क्वेश्चन इट यू दैट इज़ अ क्वालिटी यू कैरी थ्रू आउट योर लाइफ एंड दैट इज़ वाई इट्स नॉट लाइक बीइंग अ रिबेलियन आई थिंक ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटी होना चाहिए कि आप सब चीज़ को क्वेश्चन करो जो हमने फिल्म में विधि के कैरेक्टर को भी डालने की कोशिश विद नीलेश इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग या कि छोटा बच्चा जो है उसको कुछ चाहिए तो वो चिल्लाता है रोता है एंड फिर हम उसको बोलते हैं वो कंडीशनिंग होती है कि ये मत करो ये गलत है तो वो बट एक्चुअली जो बच्चा है वो कर ही रहा होता है वो चिल्ला रहा होता है वो रो रहा होता है कि आई वांट दैट हम कंडीशन कर देते हैं कि ये गलत है मत करो yeah this is what we teach here also कि we are all conditioned we are so stuck in values and as morals an of what artist we you do. need to have that voice और having a voice उतना ही होता है कि आप सवाल पूछ रहे हो because you cannot take a filmmaker cannot take the burden of changing society it will मतलब अभी लोग हमारी फिल्म को हिस्टोरिक बोल रहे हैं बहुत ओवरवेलमिंग है हिस्टोरिक वर्ड भी सुनना बट आई थिंक ये बेसिक होना चाहिए ये हिस्टोरिक नहीं होना चाहिए यू नो बाकी सब फिल्में इसके हिसाब से चेंज होनी चाहिए दैट इज़ एंड ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एज अ फिल्म मेकर मुझे बहुत ही पोटेंट डिवाइस लगता है कि दैट इज़ अ मोमेंट एक्टर कैरेक्टर कनेक्ट्स टू द ऑडियंस मतलब लास्ट में जब शेखर कैरेक्टर जब वो पोएम बोलते हैं एंड ही सेज कल हमारा है ही इज डायरेक्टली लुकिंग एट पीपल एंड सेइंग दैट यू नो ईदर यू गिव मी प्लेस इन सोसाइटी और आई विल टेक इट So But I it's think it's a very difficult good device. It Sometimes, is because वो sometimes gimmicky भी audience कर break सकता है out also from the Yes, illusion. absolutely Yeah, it क्योंकि वो can गिमिकी go भी हो wrong. सकता है Yes, और ऑडियंस वो जो वर्ल्ड में है वो जो पीप कर रही है वो बाहर आ जाती है कई बार Yeah, सो इट इज अ yeah. वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू डायरेक्ट थिएटर तो जब मैं ऑडियंस को मैंने कहा दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट यू हैव टू हैव अ राइट Yeah. मोमेंट राइट थिंग नहीं तो दे आर नॉट विद यू देन दे ब्रेक आउट फ्रॉम ओ बट आपको वो ना वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए टू नो दैट दिस इज वेरी yes you need lot Lot of of confidence courage she to has do that, that Yeah. very you have to believe that it's going to Absolutely. move And in fact जिन्होंने फिल्म देखी है लास्ट में जब विधि टर्न होकर के नीलेश को हक करती है
एंड नीलेश इज़ लुकिंग, तो हमने दो चीज़ की थी, एक शॉट लिया था दैट ही इज़ लुकिंग एट द 3 men in front of him, एंड दूसरा था दैट ही इज़ लुकिंग इन द कैमरा. सो मुझे वो मोमेंट भी चाहिए था, बट राहुल एंड आवर एडिटर ओमकार एंड दे वर लाइक नहीं यार ये पॉइंट में नहीं करते हैं, मतलब ही इज़ चेंजिंग एज अ पर्सन बट डायरेक्टली लुकिंग इन द कैमरा ही इज़ नॉट दैट पर्सन येट. आई थिंक दैट इज द बेस्ट चॉइस. yeah, so वो एक ही हाँ, मोमेंट है, बस वो एक ही moment है वो इतना film में बड़ा है, where he इतना does स्पेशल है. that. Yeah. इट मेक्स, नहीं तो वो डाइल्यूट कर देता है इस मोमेंट इस मोमेंट को, करेक्ट. इस मोमेंट को और डाइल्यूट कर देता. So now, how does your father think or see you? He is extremely proud. मतलब जब बेबाक भी बनाई थी, ये तो मेरे फैमिली के लिए भी बहुत सरील. लाइक आई सेड, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. तो फिल्म बनाना तो बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है. आप धर्मा में जाकर के एक मेन स्ट्रीम में फिल्म बना दी आपने. दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम. इट्स सरियल फॉर देम. बट ही इज वेरी प्राउड. And he comes from the industry also. He comes from the and industry. In he fact, must the day बेबाक was a short indie film, but हमने स्क्रीनिंग उसकी जब की थी, so पापा मतलब when we went home, I had a 6-hour night conversation with my father. Wow. And he just, I mean, also he is old. He kept repeating stories, and I think somewhere he was very proud of like whatever I had done. सब याद आया होगा ना? So I mean, I'm sure सब लोग relate कर पाते हैं, क्योंकि relate कर पाएंगे. क्योंकि you know you want your parents somewhere, थोड़ा validation अच्छा रहता है आपके parents का मिले. Definitely. But, और वो मेरे को yeah. लगता है सबसे ज़्यादा important होता है than everything else yes. around. Yeah. Yes. Any other question, please? Yeah, you can ask. Namaste. So, ma'am, I saw Puiba and was left highly awakened by the film. Perhaps one of the best short films I've ever watched. And now we have Dharak 2. Congratulations. Thank you. A much bigger star cast, much bigger budget, more validation, more fame. But however, I want to ask you, which film, or the comparison is the theme of joy, but I still ask you, which film was more gratifying in terms of the craft, the art, and the process of purely cinema? Let me I ask didn't you expect something. it. दो बच्चों में से कौन सा? Why are you asking this question? I'm very curious. No, I'll tell you. yeah, It, because just Yes. I'm wanting to understand. So, my choice to my journey to acting from following academia, pursuing my masters, and then I shifted to acting because of theatre. And when I come to this industry and when I think of my future, I get very confused between what I am actively seeking while being honest with myself. Am I seeking fame? Or am I seeking just to be an actor? Because I feel there are stages. You are an entertainer, you are an actor, and then you are an artist. Do I just want to be famous while doing what I love? Or do I just want to give your justice to the craft of it, no matter if I get famous, the money, but just act. So that is why I come from there to ask this. So you answered it very nicely. Yeah. Yeah, You you answered actually it, actually. answered it. That's why I wanted to ask you, think about why you asked. आई थिंक दोनों फिल्म की अपनी जर्नी है. एक इंडी शॉर्ट बनाना वो भी ईजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. ये फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है बिकॉज मेन स्ट्रीम में आप फिल्म बना रहे हैं तो यू हैव अ सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स, स्टूडियो, एवरीवन हैज़ अ से. सो यू बिकम लाइक अ डायरेक्टर, राइटर ऑन हायर. एंड आपकी शॉर्ट फिल्म में पूरी आईपी, पूरा डिसीजन आपके अराउंड सेंटर्ड होता है. एंड ये फिल्म में यू नो सेंसर बोर्ड भी आ गया. मतलब देयर आर लॉट ऑफ से सेटिस्फैक्शन वाइज दोनों ही बहुत सेटिस्फाइंग था. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक मतलब मेन स्ट्रीम फिल्म बनाया तो उसमें आई सोल्ड माई सोल, जो टर्म है, वैसा कुछ किया. आई स्टिल यू नो द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी हैड, लाइक राइट फ्रॉम द राइटिंग स्टेज. द स्क्रिप्ट वॉज वेरी कंपेलिंग. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 4 जोक्स और डाल दिए. ये होता है कि हाँ मेन स्ट्रीम में जाएगा, थोड़ा पैलेटेबल होना चाहिए फिल्म, तो गाने डाल दो. एंड यू नो देयर आर सम सिनेमैटिक ट्रोप्स दैट आप यूज़ करते हो जो हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में लैंग्वेज और ग्रामर अलग होता है फिल्म मेकिंग का. आई लर्नड इट वाइल मेकिंग इट. I didn't know how to make a commercial Hindi film. I don't know how commercial it is also. I think it is. लोग कुछ शोज़ में हम जब गए थे, लोग सीटी और तालियां बजा रहे थे, स्पेशली जब नीलेश आता है, उसके फेस पे कीचड़ लगा रहता है एंड ही रिबेल्स अगेंस्ट रॉनी. तो एक मसाला फिल्म में ही आपको वो मिल सकता है ना कि लोग सीटी और तालियां बजा रहे हैं. सो समवेयर वी हैड दैट इन माइंड. एक आपको even though you can't guess what an audience is, we are a country of 1.4 billion people. मोनोलिथ नहीं है हम. जैसे कोरिया एक बहुत छोटा देश है, 50 मिलियन लोग हैं, तो वहाँ पे आर्ट हाउस सिनेमा थिएटर में बहुत चलती है. वो हमारे यहाँ होना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स सच अ बिग कंट्री. तो
आप ऑडियंस को सोच के फिल्म बनाना मुश्किल है, फिर भी आप एक सर्टेन लैंग्वेज, एक ग्रामर फॉलो करते हो. बट मुझे नहीं लगता हमने कभी भी इतना चीट किया कि मुझे लगा कि ओ आई एम सेलिंग माई सोल. मतलब इट नेवर फेल्ट लाइक दैट द फिल्म वॉज गोइंग अवे फ्रॉम योर वॉइस, योर इंटेंशन विद द फिल्म. तो वो अपने जगह पे मुझे सेटिस्फैक्शन ये फिल्म बना के भी, क्योंकि कोई एक 20 मिनट की फिल्म की है जिसने, उसको एक 2.5 घंटे की फिल्म मिली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और हमने किया, बनाया, प्यार भी मिल रहा है. दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एक्चुअली. बट बेबा की अपनी जर्नी थी, पहले कभी फिल्म नहीं बनाया था, तो दैट ऑल्सो फेल्ट वेरी. सो इट्स लाइक Every एक्चुअली film will have a सिलेक्टिंग. different journey. Yeah, even the second film Different will world, feel different journey, different. But everything. fame is always a follower. Fame will always follow. I think You can't you've seek answered. it. You can't Never, seek never, it. ever seek The film fame. which will not work also will have a Yeah. beautiful journey. Yes. The journey is never, and for the director, it's like most fulfilling journey, I think, because it's his world, his baby. She or he brings the Highly everyone. addictive. Huh? Highly addictive. Addictive. Once you've Addictive. directed a film, Yeah, highly addictive. मुझे Like, it's the Can't best stop. job. I Yeah. think it's the best It's the job best in the job. world. Sure. मुझे Film कल किसी ने, direction. आई वाज डूइंग सम इंटरव्यूज येस्टरडे एंड समवन आस्क्ड मी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फिल्म भी सैयारा की तरह 300 करोड़ कमाती तो कैसा लगता. तो इट वाज सच अ बनाल क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज जिस तरह का हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स मिला है, एंड लाइक आई सेड, आर फिल्म सैयारा ने ये किया एंड पूरी इंडस्ट्री में एक वेव आया कि इट्स वेरी गुड दैट इतना पैसा आ रहा है इंडस्ट्री में, उससे 5 फिल्में और ग्रीन लाइट होंगी, तो ये हम सब लोग के लिए अच्छा है. बट दैट डजंट मीन कि दिस फिल्म ऑल्सो नीड्स टू Make शो that, दैट इट इज़ अ गुड फिल्म. इट नीड्स टू अर्न दैट मच. हम बेसिकली हम पैसे की बात करते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फुटफॉल्स कितने लोग देखने आए, वो आप मार्केटिंग करो, PR करो, दैट कैन हैपन. बट वी आर ऑल्सो गेटिंग लव वेयर वी आर बीइंग टोल्ड कि यार आपने मेन स्ट्रीम में ऐसी कुछ अलग फिल्म बनाई है, एंड हाउ इज इट दिस हैपेंड. फिल्म मेकर्स आर कनेक्टिंग एंड सेइंग कि यार यू हैव ओपन डोर्स फॉर अस. इससे बड़ा लैंडमार्क क्या हो सकता है. दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग आई फील पर्सनली, क्योंकि वैसे भी फिल्म कमाती है तो प्रोड्यूसर के पास जाता है पैसा, हमारे पास तो नहीं है. नहीं, also But you definitely you will be happy कि अब और भी open हो गए opportunity to Exactly, direct for you exactly. also. Yeah, For yeah. you also, yeah. It is. फॉर ऑल ऑफ अस हु आर एसोसिएटेड, आई थिंक हार्डली मैं ये फिल्म में देखती हूँ कि जो रिव्यूज़ है सारे एक्टर्स मेंशन हो रहे हैं. सौरभ मेंशन हो रहे हैं, विपिन, I साथ, have प्रियांक. never gotten such compliments. This is the first time actually. Exactly. Quite So surprised. it's very satisfying यार. You want to ask? Hi, my name is Shubham. थोड़ा सामने. Hi Shubham. I am Ayush. I'll be interpreting for him. Oh. So you guys have been saying that voice. I heard that a few times, but for me that disconnects me. So for me that connection is body. So according to me, voice and body are the same thing, and that can also help you connect with the audience and get the feel there. When we are saying So that's what you just want to say. It's our question. film What? trying to say. Yeah. When He we are saying, understood that, but he said that the word voice is being used again and again for that purpose. But even the body can be used to Oh, give yeah. the POV. Okay. We say voice, I but agree. yeah. We can use language. We can use the word Yeah. e-language, then voice. Language can be body language or vocal language or verbal Yeah. language. Yeah. I agree 100%. Got it. Thank you. जैसा मूवी बनाते बनाते एवं मूवी बनते बनते एवं फिनिश होते हुए उसमें क्या आपके में शिफ्ट हो गया, कुछ क्या बदल गया जो पहले कभी नहीं बदला आप सभी में? Can I answer that first? Please, please. मैं आई डोंट कम फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट. अगर आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो जाति इतना प्रिवलेंट है कि मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सिख में भी है. ये रियलाइजेशन फिल्म के रिसर्च के टाइम पे ज़्यादा हुआ. मतलब ऑफ कोर्स आई हैव ग्रोन अप इन, मैं बिहार से हूँ. बिहार में बहुत ही एक्टिवली कास्ट प्रैक्टिस किया जाता है, पूरे देश में किया जाता है, बिहार में बट होता कुछ है. ज़्यादा तुम गढ़ बैठ जाओ ज़्यादा पीछे है. में देखो. हाँ. तो जब रिसर्च करना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू किया, बुक पढ़ना शुरू किया, तो प्रिविलेज का रियलाइजेशन हुआ. वरना हमेशा लगता था कि मैं तो खुद मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हूँ, बट कास्ट जिस तरह से ऑपरेट कैसे करते हैं, ये रियलाइजेशन फिल्म के रिसर्च पे पता चला. एंड इट शुक मी बिकॉज ऐसा लगा कि आई डिडंट नो माई कंट्री, आई डिडंट नो वेयर आई वॉज, आई हैव बिन ऑल दीज ईयर्स. दैट self growth matters actually to me more than
the film more than how the film is going to do, what appreciation we are going to do. That journey was a big deal because मैं अब आगे 10 कहानी भी बनाऊंगी, and of course all films don't have to challenge cast, but that self growth helps you become a different person. That is more satisfying than both the film or whatever we do in life. That was that as really they say, mattered. as they say, the film you're making, that film is Makes making you. you. Yes. Yes. Yeah, I yeah. know that of that quote. It's Yeah. So it felt like यार बहुत early in the writing stage itself. In fact, राहुल और मैं जब हमने लिखना भी शुरू किया तो we would have writing room में बहुत झगड़े होते हैं. So we would have our own share of fights and argument on different things because of course you, your co-writer, actors don't come from the same stone, right? They're all coming from different background and you tend to have arguments, and that's the best thing about writing. You can discuss and but you have that opportunity to change. अगर आप rigid होकर के बैठे तो ना as an actor, director, writer, you're not an artist because an artist means that someone who's growing throughout their life. आप 60-70 साल के हो जाएंगे तो भी आप में बहुत wisdom है, फिर भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा मुझे पता है सब. You have to operate from a place of not knowing. You have to be open, and that is the attitude Rahul and me had in writers room. And as a personal growth for me, it was like कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है. पता था कि बहुत surface level पे पता हाँ, था. surface level पे पता था. तो स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री है इंडिया अनटच्ड. आई थिंक यूट्यूब पे है. बहुत ही इट्स नॉट अ गुड रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्री, बट आप सब लोग जा करके देखिए. मुझे 4 सिटिंग लगा था बिकॉज इट वॉज आई वॉज ब्रेकिंग डाउन सो मच वाइल वॉचिंग इट that it took me 4 sitting to finish a 2.5 hour documentary. Beautiful film, yeah. It's a beautiful film. He traveled all over the country, different areas, talking to people from different religion and how they practice caste. तो जैसे एक मुस्लिम कैरेक्टर ने फिल्म में बोला था कि इस्लाम में कास्ट नहीं है, मुसलमानों में है. तो बोला कि जब तक मस्जिद के अंदर रहते हैं तब तक कास्ट नहीं प्रैक्टिस करते हैं, मस्जिद के बाहर करते हैं. सो नोइंग अबाउट योर ओन कम्युनिटी, लाइक यू नो, दैट growth happened while making the film. My question would be, as an actor, how does that happen? Like, is it like हुआ तो हुआ, like हो जाता है, या फिर is this a process to enrich your brain and be able to connect with more and more things? जैसे आपके साथ वो उस character के साथ हुआ, right? As a new actor, I want that I feel that for more and more things and feel really, because that's what drives me to do acting. One thing I say to all actors, and I say it out loud to myself also, acting is not between action and cut. It's a big mistake we make. It's not. That's not acting. क्या डायरेक्टर ने एक्शन बोला और आपने एक्टिंग शुरू की, कट बोला आपने एक्टिंग खत्म कर दी. That part is the outcome of who you are. So in order to become and experience that kind of what you're talking about, will only happen when you're aware of everything apart from this place. Action and cut के बीच का जो हमने मान रखा है ना कि मैं वहीं जाके एक्टिंग करूँगा. That's not acting. You're an actor outside these two places, which means how you observe life, how you connect with people, what you read, how the world is impacting you, what the politics is doing to you. मैंने एक बार एक ऑडिशन किया था. I'll just quickly say this and then I'll have to, unfortunately I have to run because I have a very important meeting. I auditioned for one character, हार्वी काइटल के साथ एक रोल था. पूना में एक एक्टिविस्ट को जला दिया था. अच्छा. मार दिया था. नो सॉरी, नॉट एन एक्टिविस्ट. एक ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश आदमी था जो एक स्कूल चलाता था. वहाँ पे उसको जला के मार दिया था उस आदमी को. You're not talking about the Odisha incident. Odisha incident. yeah. Yeah. Then there was this guy who was with him, the Indian guy who was with him for 20 years. Yeah. So they said कि सर ऑडिशन ये है कि ये आदमी को जला रहे हैं और आप देख रहे हो. डायलॉग नहीं है. And I was like, what do I do now? ये कैसा ऑडिशन है? बोला है ही नहीं सर, लिखा ही क्या लिखेंगे, सीन में कुछ है ही नहीं, यही है, आप करो मतलब. मैंने कहा यार. So I was just sat there and I said, okay, I come for an audition. मुझे ना एक एक्टिविस्ट याद आया पूना में जिसको जिंदा जला के मार दिया गया था. वो 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैंने न्यूज़ पढ़ा था ये. When I sat there and I remembered that guy, and I remember न्यूज़ पढ़ते हुए मुझे याद आया था उसकी बच्ची और उसकी वाइफ पीछे रह गए थे. And I was so pained by it at that time when I read the news.
I don't know, that news just did something to me and I started crying. So they kept auditioning, I stopped crying, they audition, I stop, they stop, I start crying, तो ये चलता रहा 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, 4-5 मिनट, 2-3 मिनट जो भी है. तो then I was not cast for that role. Seher Latif was casting that. She called me and she said, Vipin, I'm so disturbed that you didn't get that role. I said, हुआ क्या? डायरेक्टर ने बहुत बड़ी बात की थी. अनुराग, मैं गैंग्स के शूट के लिए जा रहा था. तो उसने ये बोला था, गैंग्स में अगर अनुराग तुमको आने नहीं देगा तो एक गोली में अनुराग को मारूंगा, एक अपने आप को मारूंगा. तुमको तो मेरे को चाहिए ही चाहिए इस पिक्चर के लिए. I didn't get cast for that film. I came to know some other actor they went with. You know, but I realized it didn't affect me. It affected me at that time when I heard the news. But I realized I was given a chance to experience something so special. That's enough for me. Wow. I didn't get to do that role, but that was good enough for me to be able to go somewhere where I normally won't be able to go. This is what I mean by acting between action and cut. That's just, वो तो हम सब घर बार छोड़ के आ ही चुके हैं उसके लिए ना. That is not important. To look at life. He is Nilesh's father. Yeah. You have to look at life, not at acting. Acting तो ऐसे ही है. वैसे भी हम लोग जो करते हैं वो लोगों के लिए होता है ना, हमारे लिए थोड़ी होता है. It's like a great athlete also. It's not those 30 seconds when he runs. Yeah. It's like 4 years of that work. Absolutely. Right eating, right sleeping, right everything. It's the zone is bigger than that. Which answers your quest also. That's redundant. That's not important actually. कि वो 1 मिनट की रेस से पहले बहुत काम हो रखा है, बहुत ज़्यादा. So वो जो हमारा एक शॉट होता है बस, वो कई बार कुछ 30 सेकंड का होता है. You have to live that, and that life comes from all your practice, all your observation, all your understanding, empathy, imagination, your voice, your body. So much comes together, and it happens. And then it has to use you in that moment. जो तुमने practice करी है, that has to use you. Fortunate अगर हो जाए तो. हो जाए तो बस फिर. आपको निकलना है ना. मैं निकल जाता हूँ. Yes, Guys, yes. I'm very sorry. This is something that and I think this even like I learned while casting for ये Sacred Games और इन सब की casting हो रही थी. अच्छा, मेरी casting भी आपने नहीं आपके लिए तो फ़ोन आ गया था. एक चीज़ जो उनसे सीखी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा ये अप्रोच फॉर कास्टिंग वॉज कि सीन दे दो वो ठीक है, बट जो इंट्रो है ना वो केयरफुली देखना, क्योंकि वहाँ यू विल एक्चुअली गेट टू नो हु द पर्सन इज. जैसे ही आप सीन दोगे इट्स वेरी अनफेयर फॉर एक्टर्स, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर है नहीं. राइटर ने क्या सोच के लिखा है, डायरेक्टर ने क्या सोच के लिखा है ना, वो उनको वो पता ही नहीं लगता ना, है ना. तो वो इट्स वेरी अनफेयर कि आपको सडनली एक सीन दे दिया, 15 मिनट दे दिया, आपको पढ़ना है, इट्स योर इंटरप्रिटेशन. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि आपने कैसे इंटरप्रेट किया उसको. बट वो जो इंट्रो होता है वहाँ पे मुझे एग्जैक्टली है ना वो जो बोल गया ना कट के बाद कि अब आप अपना नाम बता दीजिए, ये बता दीजिए, वहाँ एक्चुअल रियल पर्सनैलिटी की मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वहाँ पे मुझे वो पर्सनैलिटी दिखती है. एंड वहाँ अगर वो पर्सनैलिटी वो लगी कि ये इंटरेस्टिंग है, ये इस कैरेक्टर को और एनरिच कर देगा और रिच कर देगा, तो वो एक अप्रोच इनका है. मतलब वो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड अप्रोच, बट वो मैंने इनसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा था. अनुराग सर का ये अप्रोच होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग धड़क हम लोग ऑडिशन देख लेते थे. कभी कभी कुछ होता है कि मैजिकल लगता है एंड यू नो कि दिस इज़ द पर्सन दैट विल प्ले, बट बहुत टाइम कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज बहुत सारे लोग टैलेंटेड है यार. मतलब it's very difficult to just guess कि अच्छा this is better than that. Also I feel like it's an unfair process also that in that terms. But intro में आपको इंसान ज़्यादा दिखता है more than the audition, because audition like he said that it's very unfair process. आपको फिल्म नहीं पता है, आपको फिल्म का टोन नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, and just someone is giving you 5 lines and आपको you do your best इंटरप्रिटेशन. आप अपने फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को यू नो यूज़ करके आप एक स्टेजिंग करते हैं. मतलब आई हैव बीन सो इम्प्रेस्ड बाय ऑडिशंस जो घर पे होते हैं और मोस्टली आते हैं. आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड अ लॉट ऑफ होम ऑडिशंस हैव बिकम वेरी नॉर्मल,
बट लोग अपने घर पे प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर्स, ये सब साथ में पढ़ रहे हैं. इट्स वेरी इम्प्रेसिव. बट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ ना, हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट बिकम्स मोर ऑफ अ कि ये इंसान अभी जो बोलते हैं ना ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, तो ट्रूथ ऑफ द मोमेंट वो उस टाइम पे ज़्यादा दिखता है मोर देन द ऑडिशन इटसेल्फ. सो ये फिल्म बहुत कॉम्प्लेक्स थी एक्चुअली कास्टिंग करने की. एंड ऑफ कोर्स व्हेन द स्टूडियो गेव अ गो हेड ऑन द स्क्रीन प्ले, तो पहले जो लीड हैं वो सिलेक्ट होते हैं. एंड वंस वी नो दैट वी स्टार्ट द कास्टिंग प्रोसेस. एंड एक वर्ल्ड बिल्डिंग जो मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ इस वर्ड पे. आपका आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, हेयर एंड मेकअप एंड ये सब में ना आप रियलिज्म ला सकते हो. एंड चौथा इज़ योर कास्टिंग एंड पांचवा इज़ योर डायलॉग राइटिंग. ये 5 चीज़ों में ना आप रियलिज्म से टैकल करो. कैमरा कैन बी मोर ग्रैंड बिकॉज कमर्शियल फिल्म है. म्यूज़िक कैन बी in a certain palatable way because it has to reach more people. बट ये 5 चीज़ जिसमें से एक कास्टिंग है. तो हर एक इंसान को ना हैंड पिक करना है. मतलब आपने जो फिल्म देखी है अभी, तो वो नीलेश के साथ जो 3 लड़के हैं, भीम, बाला, सचिन, जो एक्चुअली टर्शरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, तो वो टर्शरी कैरेक्टर मुझे पता था कि ये भोपाल से होने चाहिए. डायलेक्ट और लैंग्वेज वो रॉनेस वो लेकर के आएंगे. तो आई वॉज जस्ट नॉट कास्टिंग. मतलब हमने शूट शुरू कर दिया था. 4 नवंबर फर्स्ट डे था शूट का. भीम, बाला, सचिन वर रिक्वायर्ड बाय आई थिंक 10th और 11th. एक हफ्ता बाकी था और मेरे एडीज़ मुझसे परेशान थे बिकॉज मैं उनको लॉक नहीं कर रही थी. सो आई सेड नो, आई विल गो एंड डू द कास्टिंग इन भोपाल. इट इज़ बेटर दैट वे. दे आर इट एंडेड अप दैट वन ऑफ द बॉयज़ ऑल्सो दे शिफ्ट बिटवीन भोपाल एंड बॉम्बे टू गेट वर्क. तो एक एक को ऐसे हैंड पिक किया. मतलब वो सचिन का एक रोल है जिसका शायद 3 या 4 सीन है फिल्म में, हार्डली एनी लाइन्स इफ़ यू सी दैट वे. बट वी वुड हैव गॉन थ्रू आई थिंक 35-40 बॉयज़ टू रीच सचिन. दैट्स योर टर्शरी कैरेक्टर. आई थिंक इतना आपको कास्टिंग में इतना इंट्रिकेसी के साथ घुसना चाहिए कि, और हम हमेशा नीलेश सिद्धांत जो है उसका फ़ोटो या वीडियो रख के फिर अच्छा अब ये भीम है, अब ये बाला है और ये सचिन है. सो वी आर ऑलवेज वर्ल्ड बिल्डिंग दैट दे शुडंट लुक लाइक दे आर नॉट फ्रेंड्स. सो आई वॉज वेरी वरिड कि सिद्धांत जब हम लोग पहुँचे भोपाल में, तो वी आर गोइंग टू शूट हिज सीन विद दीज 3 बॉयज़ जो हम उसके चाइल्डहुड के फ्रेंड्स दिखा रहे हैं. भले 3 सीन हो फिल्म में, बट वो 3 सीन मैटर करता है. Because one of the scene was when the dog dies and they are holding him and they are crying. In fact, I would say screenplay पे वो लिखा भी नहीं है कि वो उसको hold कर रहे हैं. The way they have done it, yeah. How do you जब कुछ reaction बड़ा impact होता है, जैसे the train comes and hits the dog and all the 4 boys are running towards the dog. आप ये लिख नहीं सकते हो कि वो moment पे actor क्या करेगा, right? What will an actor do? How will the character behave? You can say they are devastated. अब डेविस्टेटेड का ये राइट हाथ से पकड़ना है, उसको लेफ्ट हाथ से. तो ट्रेन जो आप देख रहे हैं फिल्म में, वो एक्चुअल ट्रेन आई थी. हमने एक स्टडी कैम पे यहाँ पे कैमरा लगाया था. एंड ऑल द 4 बॉयज़ आर रनिंग. एंड ऑफ कोर्स फॉर सिद्धांत, बिकॉज द डॉग बिलोंग टू नीलेश's कैरेक्टर, बट वो तीनों लड़के हमने उनको इतना बोला, इन्फॉर्मेशन दिया कि ये कम्युनिटी का डॉग है. मतलब यू ऑल गॉट रेज्ड विद दिस डॉग, सो यू ऑल आर अटैच्ड टू इट. बट दे आर अटैच टू नीलेश एंड दे आर अटैच टू डॉग. तो ये सब जो भाग के है, और नीलेश ने सिद्धांत ने अपना सर पकड़ा एंड ही स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. ये तीनों लड़कों ने आके उसको पकड़ लिया. नाउ इट हैपेंड बिकॉज देयर वाज वी लेट देम स्पेंड टाइम टुगेदर. मतलब मुझे उनके साथ वर्कशॉप करने का भी मौका नहीं मिला था बिकॉज दिस वॉज ऑल हैपनिंग अ लिटिल लास्ट मिनट. बट इतना हमने टाइम दिया था कि सिद्धांत और तीनों लड़के दे स्पेंड टाइम टुगेदर. वो भैया 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 करके दे गॉट इनटू दे बिकेम फ्रेंड्स विद ईच अदर. और जब वो मोमेंट आया तो आई जस्ट टोल्ड देम कि ऑल 3 of you all हैव टू, मोर देन क्राइंग फॉर द डॉग, यू आर क्राइंग फॉर हिम. उन्होंने जाके उस तीनों ने इन द मोमेंट, एक ही शॉट था बिकॉज एक्चुअल की ट्रेन गई थी, एक ही शॉट था एंड उन्होंने जाके उसको पकड़ा. नाउ दीज आर बॉयज़ हु डन थिएटर. They are not even, for all 3 of them, this is the first time. I think one actor had done some series or something. बाकी दोनों का तो first time कैमरा के सामने experience था. But for them to become that person, now this is just it is like, it is taking a risk.
इट इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, बट उनके इंट्रोडक्शन में कुछ दिखा या उनके ऑडिशन में कुछ दिखा एंड यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बट यू पुट दैट वर्ल्ड बिल्डिंग आप साथ में करो, and that helped. And the way they are holding and crying, holding Nilesh and crying, that actually makes the scene. Now people don't give credit to Bheem Sachin. They are saying कि यार सिद्धांत is so brilliant in that moment. But that उन तीनों को, but वो जो scene पे आपको रोना आ रहा है is because चारों लड़कों ने एक साथ हक किया है. Now this is, you have to take a leap of faith on someone who you haven't seen. उनका ज़्यादा काम है नहीं, आपने देखा नहीं है, तो ये I think the whole filmmaking process is only like that, that you just take risk. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But अगर एक ट्रिक करना है तो like we said, आप intro में be yourself in the intro. We look for personality, क्या है मतलब, and वहाँ हम देखते हैं कि ये this is your natural self when you are giving the intro. तो वो जो natural self है ना, वो effortless होता है. उसमें you are not putting effort, you are not trying to, इस scene में आप effort डाल रहे हो ना. मेरा नाम बताने में क्या एफर्ट है उसमें, और थोड़ा सा सौरभ रिसर्च, सचदेवा है, और थोड़ा सीन में ये सब हो जाएगा. सौरभ सचदेवा. आप जिसके लिए ऑडिशन कर रहे हो उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो फॉर अ फिल्म. मतलब जितना इन्फॉर्मेशन निकल सकता है आपके कास्टिंग डायरेक्टर से कि किस तरह की फिल्म है, रियलिज्म के ऊपर ज़्यादा है या यू नो इट्स दिस बिग बैनर कमर्शियल फिल्म. सो उसके हिसाब से आई हैव गॉट ऑडिशन वेयर यू नो पीपल आर फुली ड्रेस्ड अप. अब मैं आई वॉन्ट टू सी द पर्सन, बट इतना ड्रेस्ड अप है कि इंसान ही नहीं दिख रहा है. सो ट्राई टू बी योर सेल्फ. द डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स दैट वे आर, आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ कास्टिंग डायरेक्टर्स अप्रोच समथिंग. आई नो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो दुनिया पूरी अलग है, बट एज अ डायरेक्टर आई वुड वॉन्ट टू सी द पर्सन. And I would not want to see how beautiful or pretty or good looking you are, because at least honest directors का वो process नहीं होता है कि यार this person has to be, unless the character is like this person has to be a stud or something. But this whole like that. casting process is what I Is also very observe is very difficult. ruthless. Yeah. And it's a ruthless process where you have to go and emote. तो वो बहुत difficult है. वो मैं वहाँ खड़े होके देखता था, मुझे लगता था ये मतलब how are you guys doing it? That too in front of the camera. और आपको like you have to give with your minimum best information. with minimum information. So इसलिए फिर हम लोग के लिए वो information भी ज़्यादा important होती है where you're giving your intro. You have to bleed in front of people who care, who might care or not care. Not care. Yeah. And every time it's a tough job. Sorry guys, I know It you is, all it know is. better than me, but I tell it to my actors कि actually set पे सबसे ज़्यादा difficult काम actors का होता है, because आपको पूरा माहौल दिया जाता है जहाँ 200 लोग आपके आसपास, मैं फिल्म एक्टिंग की बात कर रही हूँ, कि 200 लोग आसपास काम कर रहे हैं and they don't care about you know a lightman or like you know an assistant director. Nobody cares about कि अरे someone has to be in their head and be in the character. वो इधर से चिल्ला रहा है, उधर से कोई और चिल्ला रहा है, कुछ और कर रहा है. हमारे इमोशनल सीन में मुझे जाके एडीज़ को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि प्लीज़ गिव स्पेस टू द एक्टर, दे हैव टू बी समन. तुम एक, हम शेखर का सुसाइड सीन शूट कर रहे थे एंड वन ऑफ द एडीज़ केम और जैसे ही कट बोला एंड सिद्धांत इज़ ऑन द फ्लोर, ही इज़ क्राइंग, शी केम एंड शी कट, मतलब वट एवर केम, आई थिंक clap person. And she came and she entered the frame laughing. So I told my script supervisor to bring her back to the monitor and I said, till you're not able to let an actor be, please get away from them. Because आपके मूड के वजह से वो उनका, they will come out of the moment, they will come out of the truth. तो आपको सेट पे माहौल भी वैसे बनाना पड़ता है. It is not just an actor's job, it is everyone's job to make sure that the actor is not disturbed and they are able to be in that head. Depending on, मतलब आप comedy scene कर रहे हो, उसके लिए भी comedy सबसे ज़्यादा difficult होता है करना, तो आपको उसके लिए भी you have to work towards it. But especially during tense emotional scene, most directors, most teams don't care. That's a little unfortunate. But how can an actor ask this? मतलब ये तो अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं मिला तो फिर एक्टर तो मर ही जाएगा. तो वही बोला ना कि एक्चुअली होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक आधा टाइम अब जब परफॉर्मेंस सुपरफिशियली ख़राब देखते हो तो आई वुड ब्लेम द डायरेक्टर देयर देन द एक्टर, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, और कोई यू नो फिल्म वट एवर नो मीडियोकर फिल्म उनकी परफॉर्मेंस कम है. तो अब हाउ डू यू जस्टिफाई दैट कि ये पर्सन जो इतना केपेबल है
और उसकी परफॉर्मेंस इतनी, तो मतलब आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स डोंट नो हाउ टू टॉक टू एक्टर्स, कि उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उनको क्या डायरेक्ट करना है, क्या बोलना है, वो नहीं कर पाते हैं, और उसी में आधा गेम तो मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है ना स्टोरी टेलर्स में कि अरे मुझे इस इंसान के बारे में जानना है, तो आई थिंक वो एक्टर्स में भी होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो रीच आउट टू द डायरेक्टर एंड से आई वांट टू नो योर स्टोरी, बिकॉज अनलेस यू ओपन अप एज अ पर्सन, सामने वो होता है ना कि आप किसी से बॉन्ड कर रहे हो, तो मेरे साथ ये हुआ था, कैन यू रिलेट टू इट, इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो सामने वाला भी बात करता है, so they open up to each other. So like my personality is very intimidating, and sometimes people feel, oh should I, कितनी बात करें इससे, कितनी ना करें। like राहुल कह रहा है कि हम इसको बोलते थे और फिर चले जाते थे, पता नहीं कौन से जोन में बैठा है। So sometimes we need to have that discussion. Okay, I'm in my zone. You can say whatever you want to. So we have to keep building that sensitive place, क्योंकि हर लोकेशन अलग होती है, फिर आप भाग रहे होते हैं टाइम के अगेंस्ट, फिर आप भाग रहे होते हैं पैसे के अगेंस्ट, तो सबको मिलके काम करने की बहुत 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 ज़रूरत है, मेरे को लगता है। नहीं, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी इन्होंने बोला है ना, कि लाइक ऑब्जर्विंग पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है ना, उसका एक लिमिटेशन होगा, एक पॉइंट के बाद एक सीलिंग होगा। इफ़ यू डोंट ऑब्जर्व पीपल, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल इन देयर स्टोरीज, तो आप बोरो कहाँ से करोगे? इट कैन बी पीपल, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी मूवीज, इट कैन बी ट्रैवल, एनीथिंग, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। It's a people's business. Yes. You will not love everyone, but you have to like people. You have to like people. You're playing characters. तो अगर आपको पता ही नहीं हो आपके अलावा आप कौन और है और क्या कैसे बिहेव करता है। Yes. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल मेजरली जो एक्टर्स हैं वो क्रिएटर्स बन रहे हैं धीरे धीरे, जैसे अपने इंस्टाग्राम पे वर्टिकल सीरीज चलाना या अपने वीडियोस अपलोड करना, तो कितना इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए एक बैंक ऑफ फॉलोअर्स लेकर आना कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के पास, और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो एक्टर्स हैं, एक के पास मे बी 1-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक के पास नहीं है इतने फॉलोअर्स, तो क्या वहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द रोल और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग? लाइक मैंने मेरी कास्टिंग टीम को बोला था कि प्लीज़ फॉलोअर्स देख करके कास्टिंग मत करना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी बिकॉज यार ये कितनी वाहियात बात है कि आप फॉलोअर्स देख करके आप कैसे कास्टिंग कर सकते हो। उसका आपने पूरा टैलेंट और जितना उन्होंने मेहनत किया, सीखा है, सब कुछ साइडलाइन कर दिया। बट ये इतना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया अनफॉर्चुनेटली ये है। एंड ये सिर्फ फिल्म्स में नहीं है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, ये रिटेल वर्ल्ड में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं अपने काम पे और अलग अलग जगह। थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट हो गया है, इन एक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। बट आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, इट मेक्स मी वेरी एंग्री। तो मैंने एटलीस्ट हमारे कास्टिंग प्रोसेस में बोला था कि वी विल कास्ट फॉर व्हाट दैट पर्सन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग रादर देन हैविंग द फॉलोअर। आई थिंक दिस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। इतना कॉल आउट होता नहीं है जितना होना चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स को एक स्टैंड लेना चाहिए, वो उनकी टीम ना करे, वो खुद नहीं करे। There should be something done about it. And मतलब I'm saying like in terms of production, you know, producer union, director union, सब लोग they should gather together and say कि this should stop as a practice. Because it doesn't matter. अगर किसी के 100K followers हैं तो आपकी फिल्म को 20 करोड़ ओपनिंग नहीं मिलेगी। अभी I can tell you कि शाहरुख खान की जवान और पठान चल गई, डंकी नहीं चली। अब शाहरुख खान से बड़ा तो कोई एक्टर नहीं है अभी देश में, तो वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है। आप प्राइमरी और सेकेंडरी कास्टिंग कर रहे हो फॉलोअर्स देखी। शाहरुख खान की एक फिल्म चली, एक फिल्म नहीं चली है, तो ये लॉजिक ही नहीं है ये पूरे प्रोसेस में। सो आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड। इट्स अ कम्प्लीटली रिडिकुलस प्रोसेस। दिस हैपेंस व्हेन दे डोंट नो हाउ टू कास्ट। इनफैक्ट हमारे फिल्म में जो वासु है, जो नीलेश का फ्रेंड है, आदित्य ठाकरे नाम है, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। हमने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जिस दिन वो लुक टेस्ट के लिए आया था तो किचन के स्टाफ थे, दे केम टू मी, इज़ लाइक मैडम आपने आदित्य ठाकरे को कास्ट किया है? तो आई सेड आप लोग जानते हो? इज़ लाइक हाँ वो तो बहुत फेमस है। तो मैंने बोला अच्छा, वी डिडंट नो। So I was not looking at anyone's Instagram account before and this is his first film. And in his intro he said something that really touched us. उसने अपने इंट्रो में बोला कि मेरे पापा जूनियर आर्टिस्ट थे
और वो एक्टर बनना चाहते थे, बट अभी उन्होंने अपना सपना पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे. एंड आई इमीडिएटली रिलेटेड इट टू माई स्टोरी एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस बॉय. सो दैट वॉज अ थिंग. एंड देन बाद में पता चला अच्छा ही इज़ पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम. सो मतलब अगर शायद किसी को लगे कि हमने उसकी कास्टिंग इसलिए की है क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं, बट इट्स अ रिडिकुलस प्रैक्टिस. आई थिंक इट शुड completely shut down. And the last, it's not a question, but I just want to tell you that you said that your father told you that Indira Gandhi ke wo fan hua karte the, and I don't know if you realize that, but as a woman and as everybody, a girl sitting here, I think you made a major impact in place of you sitting as a director, a female director, talking about such a revolutionary topic, and I think it gives us a lot of strength knowing that in such a male dominated, if I may see, it's been like that. Means after Sai Pranjpe, I know a female relevant director. So I hope you know that in our stories maybe you will be. Yeah, your fan will tell. Thank you. This is more love than I expected, but thank you so much. I don't know what to say. I just hope it's more inspiring and to everyone, not just to women out there, क्योंकि सपने देखने का मौका ही नहीं दिया जाता है. एंड अगर किसी को वो इंस्पिरेशनल लग रहा है तो आई थिंक बड़ी बात है. एंड आई होप कि अदर पीपल 10-20 years down the line is like हाँ हमने शाज़िया को सुना था और we heard about her journey. And maybe one thing that I learned from her is मतलब उसको sum up करके अगर बोले जैसे, I think there's a quote like if you want to become an artist, one thing that you don't need is permission. Two things that you need is courage and imagination. Yes. Yes. If you have this, if you understand this line, I think you're there. बाकी फिर स्ट्रगल तो जारी रहेगा. शायद ये फिल्म बनाने के बाद भी, शायद नहीं, डेफिनेटली ये फिल्म बनाने के बाद भी दूसरे फिल्म की जर्नी भी उतनी ही मुश्किल होगी. सबके लिए रहती है. बट इट बिकम्स मोर एंड मोर ग्रेटिफाइंग एज द जर्नी इज. सौरभ का बेस्ट सीन कौन सा लगा आपको? सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या थी? It was you guys noticed the cough in the film that he keeps coughing. So he came on the first day. आज भी कर रहा हूँ मैं. He came on day one. We were shooting the opening scene of the film where he throws the boy off the balcony. तो वो चल के आए तो उन्होंने अपना एक gate. He was walking like Shankar. I was like भाई ये तो कमाल का है. And then he was coughing. तो पहला टेक हुआ तो वो खांसी कर रहे थे. So I was like यार ये तो it's like an idiosyncrasy of an actor कि यार ये he constantly coughs. तो ये कहाँ से आया कि एक्चुअली ही इज़ अ कारपेंटर इन द फिल्म, राइट? एंड कारपेंटर्स मोस्टली जब रंदा मारते हैं इट गोज इनटू. सो मी एंड राहुल क्विकली स्पोक ऑन सेट एंड ही सेड लेट्स गिव हिम दिस कॉफिंग एज अ कैरेक्टर ट्रेट. जब हमने दूसरा सीन शूट किया जहाँ वो लड़की को ही थिंक्स दैट शी इज़ डेड एंड उसको लटका रहे हैं, ही इज़ फ्रेमिंग इट एज अ सुसाइड. एंड the moment some things happen like magic on set, and you should allow yourself to have that on set and not have everything prepped and written on paper. So you should be open to all these magical things on the set. तो वो जो खांसी हमने वहाँ पे यूज़ किया था तो इज़ लाइक ये लड़की जिंदा है वो कैसे पता चलेगा. तो he is coughing while he is still like putting the फंदा around her neck, and it's like what if she coughs? And and that moment has become the most chilling moment in the film. So that is my favorite moment, that particular moment when she comes alive. And he's so good, the way he looks at her, the way she looks at him, and she almost looks at like, oh, he's going to save me, and then within a second things go down. So I think that's my favorite moment, but it's really very hard to pick. There's also a line when he says समाज की सफाई कर रहा हूँ. That moment when he says that, now you understand, it's like the theme of the film. All the caste-related atrocities that happen, he is underlining that. So that's a great moment as well. But, very hard to pick. But no, that line itself, समाज की सफाई कर रहा हूँ, he understood that इसमें मुझे pride लेना है. And the way he says it, like to Ronnie, that समाज की सफाई करो, मतलब जो उनके आँख चेहरे का, क्योंकि है ये मिड शॉट लगाए, आप बॉडी लैंग्वेज भी कितनी दिखा सकते हो और ऐसे ही खड़े रहना है बस. तो इट वॉज द वे ही सेज इट, द वे ही ओन्ड दैट लाइन कि आई एम टेकिंग प्राइड इन इट.
तो ये ना, ये लाइनों को समझना भी कि मेरा जो कैरेक्टर है वो नॉट अ क्रिमिनल, Yeah. he is That's why doing the it line was is very important. That वो अपने आप को, और if you guys remember the film, शायद जिन्होंने 3 बार देखी उनको याद रहेगा, he says criminal नहीं हूँ मैं, and we cut to a shot where he has a matchbox in his hand. That matchbox says fighter. Because he thinks he's a fighter. He's fighting. Of course, it's a very problematic mentality that he comes from, but he thinks he's fighting for, cleaning the society. No, that one important thing, because of borrowing from you, that when we are writing his character, we are not judging him. तो वो actually ये acting में भी बहुत आता important है कि वो जज नहीं कर रहे थे शंकर को, वो तो बोले करेक्ट कर रहा है ये बिल्कुल, ये और मान रहे राइटर्स को हैं। भी नहीं करना चाहिए, डायरेक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही कैरेक्टर को जज करोगे मॉरल बाउंड्रीज लेकर के, तो वो विलेन और हीरो के कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इन एज एन एक्टर, इफ यू आर प्लेइंग अ रेपिस्ट, राइट, अ loathsome person, but if you are judging yourself, you will play it on a very surface level. You have to play at a level where you psychologically understand the character for the truth of that character to come out. Because एक murderer, एक rapist अपने आप को judge नहीं करता है. So you have to see characters like that. Same process for writers, directors also. True. But when he played it like he believed in that. And I think हमने पहले नरेशन में इनको बोला था, एक ईरानियन फिल्म में होली स्पाइडर नाम की, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था where there was this guy, it is based on a true story. There's this guy who used to go in 90s Iran, he used to go around killing prostitutes. He was in a city which is considered like a holy city for Islam. तो उसे लग रहा था कि वो समाज को साफ कर रहा है by killing prostitutes, and he's doing it in service of Allah. So that example we had spoken about. If you please go and watch that film. Yeah. It's a stunning film, Holy Spider. तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी he was like, that character was a reference for Shankar, and I think Saurabh like came exactly close to that. That was Oh, wow. Thank Please you. watch the film. Yeah. His body language and the way we've also dressed you, the way that guy dresses up in the film, by the way. It's a strong reference for us. Yeah. Hi, my name is Vijay. Actually, there are a couple of scenes which like stayed with me for like 30-40 seconds पर movie देख रहा था. आगे की movie नहीं देखी मैंने, but they like stayed with me. So there are series of scenes जहाँ पे Saurabh sir is killing people, like 2-3 scenes है जहाँ पे he kills, and there comes a scene जहाँ पे I guess मेले का scene है वो, and वो एक झूले पे कोई couple झूल रहा होता है, then he sees the balloon and Yes. he goes that. तो like that was improvisation या वो आपने लिखा था, और वो कहाँ से वो thought आया? Because it felt like उसने फिर एक इंसान को मार दिया. मतलब वही था उसका वही point, था Like, point वही था. So how did it come to you? वो राइटिंग स्टेज पे आया था, वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं था. नहीं तो फिर वो गुब्बारे वाला कहाँ से लेकर आते? हाँ, तो वो गुब्बारे वाले के लिए वेट किया हमने 6 घंटे तक. यू नो दैट वो आया ही नहीं था क्योंकि भोपाल में स्ट्राइक था उस दिन. तो जब शूट कर रहे थे पूरा तो crew गुब्बारे एक वाले को गुब्बारे वाले के 6 लिए बजे wait कर आना था, वो रात को 11 बजे आया. एंड वी वर वेटिंग. तो हमने शूट भी किया था, हमने किलिंग शूट किया था. भगदड़ मचती है मेले में, सब लोग भाग रहे, बट वो थोड़ा एक लगा कि हम पॉइंट मतलब स्टोरी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 2 पैरेलल स्टोरी चल रही है. एक नीलेश और विधि की लव स्टोरी चल रही है, और एक हम कैरेक्टर को देख रहे हैं जो पहले एक लड़के को मारता है, फिर एक लड़की को मारता है. तीसरी बार ये पेपर पे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन एडिट में फील हुआ कि अरे वापस से किलिंग दिखा रहे हैं. सो वो किलिंग दिखाने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट हो जाएगा कि ही इज़ ब्रेकिंग अ रेड हार्ट, विच इज़ वॉट लाइक ही इज़ अगेंस्ट लव, ही इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ दैट. तो वो ज़्यादा सिम्बॉलिक हो गया इंस्टेड ऑफ. और जब आप एडिट भी करते हो ना, तो अच्छा ये काटो, ये हटाओ, प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी आपके सर पे बैठे रहते हैं, बिकॉज यू हैव अ रन टाइम, एंड इट फेल्ट थोड़ा रिडंडेंट कि उसमें भी हम किलिंग दिखाएं. कैरेक्टर जो आर्क है ना, उसमें पॉइंट आपने क्लियर कर दिया है कि ये क्या कर रहा है. फर्स्ट किलिंग में आपने दिखाया कि गिरा दिया नीचे और निकल गया है, कुछ बताया नहीं है, देयर इज एन एंट्री. सेकंड किलिंग में हमने बता दिया कि अच्छा कुछ और है, देयर इज अनदर लेयर टू इट, ही हैज़ समथिंग गोइंग, मतलब एक ही हैड अ सिस्टर, और वो एक साउंड डिज़ाइन भी चल रहा है उनके हेड में, ठीक है, वो भी है. अब थर्ड आपने बता दिया ये क्या करते हैं. मुझे लगता है वो और भी थ्रेटनिंग हो जाता है, और ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है व्हेन यू कीप टू द इमेजिनेशन ऑफ ऑडियंस. इनफैक्ट हमने शूट किया था, एक बार ऐसे किया, फिर दूसरी बार ऐसे किया, तीसरी बार कैसे कर रहा होगा भाई, क्या कर रहा होगा वो यहाँ पर, राइट? सो दैट बिकम्स मोर. फील होता है कि शायद ऑडियंस के नाम से पहुंचे, तो आई वाज लाइक आपने शायद वही आई गॉट माय पॉइंट कि
got the answer कि आप लोगों ने shoot किया था. It becomes a more cinematic moment actually. और वो पता लग ही रहा है जब वो हर बार ही आ रहा है और वही चीज कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे भी क्लैरिटी है उस बात की. बट पता है इनका कैरेक्टर लिखते हुए हमें बड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि मज़ा आया, बट इट्स वेरी क्या होता है ना, इट्स बहुत गलत होगा ये कहना कि मज़ा आया, बट स्टिल ही इज समवन हु इज चैलेंजिंग. मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बना हुआ है, एंड ही इज सेइंग कि वो बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है, एंड ही इज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट दोज लाइन्स. हम रोज़ नहीं, हमको भी मिले ही नहीं इन लोगों से, तो है ना वो लिखना, और उसमें होता है कि मुश्किल, इनफैक्ट हमें और फ्रीडम मिल जाता है कि क्या, तो वी है ना वी डिसाइडेड दैट आपके कैरेक्टर को ऐसे रखें कि ये इम्प्रोवाइज़ करेगा वहाँ जाके, कि वहाँ जाके देखेंगे कि क्या क्या है, अब मैं यहाँ पे कैसे मार सकता हूँ. सो वो मेले की एक्चुअली किलिंग हमने शूट की थी, और वो अब है नहीं, बट उसमें है ना वो जो कपल है वो कुल्फ़ी खा रहे होते हैं और ये वहाँ खड़े हैं और वो देखते हैं कि अब मैं यहाँ कैसे मारूँ, तो वो फायर क्रैकर लेते हैं और भीड़ में छोड़ देते हैं, एंड वो कुल्फ़ी स्टिक जो है वो चलते 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 ऐसे मार देते हैं, एंड वो पियर्स हो जाती है यहाँ से. सो दैट वाज हिज कैरेक्टर कि वो कैसे कर लेते हैं. Actually काफी सारे नरेशन के वक्त there were people who were like there's this popular actress जो तृप्ति के पहले उनको नरेट किया था. At the end of the narration, she's like, "Can I play Shankar?" And I was like, "नहीं, थोड़ा, you know, we can flip gender, but थोड़ा ज़्यादा extreme हो जाएगा." But she really wanted to play Shankar. Actors Everyone delight was this reacting character to play, no? I Yeah. think any actors delight. I think. Yeah. Yeah. Anything else? Yeah, it was. Thank you for being part of this small For calling us get together and enlightening them about the, because I think most of them are पहली बार वो एक्टिंग कोर्स करने आए हैं या मुंबई आए हैं, और कई लोगों ने कोर्स कर लिए हैं, कई लोग पुराने बैचेस के हैं, कोई लोग नए बैचेस के हैं, अभी कर रहे हैं, इनको भी 5-6 दिन ही हुए हैं. So it's beautiful to talk people from who have come from down there, और उन्होंने अपनी स्ट्रगल करी है, अपने तरीके से दुनिया देखी है और अपने तरीके का सिनेमा बनाया. दैट्स वेरी मोटिवेटिंग. और फॉलो नहीं किया कि मेरे को वैसा ही बनाना है क्योंकि वैसा ही चलता है. सो दैट्स really I'm very happy to have you here. I'm really wonderful and happy. It's such a and good experience, and I have to say, I mean, apart from what closeness I feel with you, like, you know, when I entered, I was like, अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि 10-12 लोग आएंगे. So I was just surprised so many people wanted to hear us and, you know, be okay with sharing our experience. It's a tough job to be an actor. बस इतना ही बोल सकती हूँ कि हिम्मत मत हारना, अगर अंदर है तो just live with that. And लोग ऑनेस्टली मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि तुझे पता है तेरे ऊपर रेडिट पे बात चल रही है, एंड आई सेड क्या बात चल रही है, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि इस शाजिया नेपो किड, तो कोई बात कर रहा था कि इसको धर्मा की फिल्म कैसे मिली, तो देन समवन रिप्लाइज दैट नीनी शी इज़ मेड अ शॉर्ट फिल्म एंड कुछ सीरीज़ बनाया है, शी इज़ नॉट अ नेपो किड, जो बहुत ऑड है एक्चुअली. नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर, ये कॉन्वर्जेशन भी जिस देश में कास्ट इतना डीपली रूटेड वे से ऑपरेट करता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वहाँ पे सिर्फ यू नो ये नेपोटिज्म का कॉन्वर्जेशन भी बहुत अजीब है. बट नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट पीपल कुडंट बिलीव कि इसको फिल्म कैसे मिली है, बट एक्चुअली ये मेरा 18 साल है इंडस्ट्री में, मैं 2006 से काम कर रही हूँ. सो इट्स नॉट कि कोई आया 1 साल में, एंड तो कहीं ना कहीं आपको परसिस्टेंट, यू हैव टू यू नो हैव दैट परसिवरेंस कि आप जो भी हो, कुछ भी कोई भी बोले, आपको अगर करना है तो आप करो. इट इज़ बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा, बट दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज द ट्रूथ. Do what you love. इतनी बार बोला जा रहा है कि क्लीशे हो गया, but it's a truth. या मुझे कल जैसे पूछा ना कि अच्छा आपको मतलब डू यू वांटेड योर फिल्म टू बी लाइक सैयारा, आई सेड मोहित सूरी बेचारे 20 साल से फिल्म बना रहे, दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, व्हाई यू इवन कंपेयरिंग, इट्स सच अ ऑड थिंग टू डू दैट. फॉर मी पीपल सेइंग कि ये हिस्टोरिक बॉलीवुड फिल्म है, इतनी बड़ी बात है फॉर अ डेब्यू डायरेक्टर.
for this to happen. तो मेरे लिए वो सक्सेस है. मेरे लिए ये सक्सेस है कि आप लोग इतने सारे लोग आकर के मतलब हम लोग को सुनना चाहते हैं. This is really surreal to be honest. कोई एक बात करता है उसके 10 followers नहीं होते. You are coming here to just listen to us. That is also success. So it will also happen to you. Just believe in that and keep at it. Yeah. Yeah, correct. Thank you, Rahul. Thank you, Ajay. Thank you so much for being part of this, and thank you for coming. It's honor to have you. I also wanted to be an actor, by the way. Yeah. Actor writer की journey same होती है. ऐसे ही होती है. Same होती है.